to everyone present here. आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए एग्जाम के बारे में बात कर पाए। ये कैसे होता है, इसमें कैसे रजिस्टर किया जाता है और क्या डिफिकल्टीज आपको इस एग्जाम को देते हुए आती है, वो सारा कुछ आज यहाँ डिस्कस होगा। हर साल लगातार 8 से 9 लाख बच्चे इंक्लूडिंग गर्ल्स appear for this exam and only 400 are selected। और यहाँ आज एक गर्व की बात है कि उनमें से 2 हमारे बीच मौजूद हैं। तो कृपया करके अपनी तालियों से स्वागत कीजिए निकुंज सूद और अंशित ठाकुर का। आज ये 2 मेंटर्स हमें जानकारी देंगे कि हम कैसे एनडीए को क्रैक कर पाएंगे, और इनकी इंट्रोडक्शन और अच्छी तरह करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा लावण्या और वानी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। टू बिगिन विद, हम सभी को पता है और अभी पनक ने मेंशन भी करा कि हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एनडीए एनए के एक सेमिनार के लिए। And to get you all aware, from the past 3 years, सिर्फ 3 candidates ने NDA crack किया है from Solan, and out of which 2 gems are present with us today, Mr. Anshit Thakur and Mr. Nikunj Sood. And also to mention, these important gems are a very important part of the DD Coaching Institute. Mr. Anshit Thakur, he was born in Rodu and brought up in Solan. He graduated school in the year 2021, and after that, in his 3rd attempt, he cleared NDA with an All India rank of 337. After that, he was recommended from 31 SSP Kapurthala, Punjab, and after that, he joined Indian Army on 8th of August 2022 and is currently in his 5th term. Mr. Nikunj Sood, he was born and brought up in Solan. He graduated school in 2020. After a drop of 1 year, he cracked NDA with an All India rank of 144. He was recommended from Bhopal 33 SSB, and now he is in the Indian Naval Academy in his 5th term. So now they are here to resolve all your queries and guide you through your journey. Also, because it is for the students and from the students, at some point they were also in a point of life where we are today, Facing all the pressure and teenage hormones, which they handled well, and I guess so we all can do the same. Today, they're at a level in life all because of their hard work and unbreakable determination. So now let's finally get started with the seminar, and I request Mr. Anshit and Mr. Nikunj to kindly take over. So good afternoon to everyone present here. First of all, before starting, I would like to thank Kiran sir for giving us this opportunity to be in front of you all and tell you about this India examination that we had cleared, and to guide you and mentor you so that you also someday come in our places. And I would like to thank Lavanya and Bani and Panav for introducing us. So as Lavanya and Vani said that we were also students at some time sitting as those बैठे हुए यहाँ पे same desk पे हम बैठते थे, but after that we cleared NDA and we came in front of you. So people think that NDA is very difficult examination, नहीं होगा clear और written नहीं हो सकता था, SSB तो हो ही नहीं सकता. This is because of the reason that people don't try. Like IIT and NIT के लिए people try, at least they have hope. Like NDA के लिए मुझे पता है क्या सोचता है बच्चे की हो ही नहीं सकता. That is not the case. Like we both are present here just to guide you. So take जितना भी तुम फायदा ले सकते हो इस लेक्चर का. We are here for you only. Don't be surprised कि नहीं यार हम तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. Like your juniors 10th वाले, we interacted with them for around 1 hour and they didn't had that much questions because they were not aware, but something is missing from Luke's. But you are at that stage. You are at that stage. तुम्हारे लिए immediate है. Immediate है. उनके लिए नहीं है, उनके पास time है. And for you guys it is We immediate. came for 11th and 12th only, but sir 12th 10th भी करते हैं. But we came for you guys. So पूरा फायदा उठाना है. ठीक है. How many of you have a general idea of what is NDA? किसी को idea है? Any General idea कुछ भी क्या क्या है? ये And announce. खड़े हो जाओ. एनडीए एग्जामिनेशन जिससे आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जा सकते हैं या फिर ट्रायल्स होता है. इसके लिए एज क्राइटेरिया 19 है. लाइक और जब आप पहले जाएंगे मुंबई एनडीए एकेडमी, इफ ये क्लियर होता है, और उसके बाद आप आफ्टर 1 ईयर ऑफ वो आप जाएंगे या तो एयरफोर्स के लिए. Army और ठीक है, Navy. we got some of it right. So ये there are some pictures की हमारी जर्नी की दिखा रहे हैं. ये joining interview जो आ जाता है when we get into academy, this is merit list.
These are for SSBs. SSB ये these are all recommended credits. G plus sign है medical का sign है कि मतलब they have cracked their SSB written, now they'll proceed for medical. medical examination. ये मेरे सेंटर की फोटो है इसमें. This is SSB Bhopal. This is the previous slide. Like this is the place where SSBs are done basically. SSB exam कहाँ होते हैं? भोपाल है. This is SSB. 20 SSB board Bhopal जो भी है. These are some जनरल स्टैट्स मार्क्स जो रिटन के लिए होते हैं. तुमको हम बताएंगे क्या क्या चाहिए होते हैं, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं. अच्छे से बताएंगे. हाँ तो तुम क्या क्या करेंगे आज? फर्स्ट डे बड़ी देंगे इसको नहीं पता. फर्स्ट बेनिफिट्स देखो इंडिया नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, इट इज द ओनली एंड द बेस्ट ट्राई सर्विस एकेडमी इन द वर्ल्ड. ट्राई सर्विस मतलब तुम्हारा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों इकट्ठे ट्रेन करते हैं. ये बात है कि none other country provides you such facilities. So it is 3 years of training in NDA, and after 3 years, one year you go to your respective services. मतलब जो आर्मी वाले वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाएंगे, देहरादून, नेवी वाले नेवल एकेडमी, and एयरफोर्स वाले एयरफोर्स एकेडमी for 1 year. So after 4 years you become a commissioned officer. Army you become lieutenant. Air Force you become flying officer. And Navy also become ठीक है, we'll ये tell you basic this- structure है. we'll tell all these points we'll tell you. Eligibility criteria, number of attempts, how to apply. It's the next. Anyone knows who this guy is? कौन? क्या है? बोलो, बोलो. हाँ. General Bipin Singh Rawat, first CDS of India. First CDS of India. He was from India. He is now martyred, but he was first CDS. Chief Mission Staff. He's an India guy. तो तुम ये बनोगे basically. Like you, this is what you can achieve if you crack India. This is former Chief Army Staff. इमरान खान ने. Next. Anyone knows who this guy is? Major Sandeep. Major Sandeep Punni. मेजर मूवी देखी है? इनके ऊपर बनी है. No, पता है NSC ताज का अटैक. हाँ, exactly. He was an India guy who gave his life to protect Indians and foreigners in Taj. And this is what you can achieve. Former Chief of Air Staff. Now this is your basic structure of NDA. ये मेन बिल्डिंग है NDA की, सुडान ब्लॉक. इतना ही नहीं है, इंडिया तुम्हारे 7000 एकड़ में है. 7000 एकड़ तो बहुत कुछ है. तो ये बस तुम्हारी मेन बिल्डिंग है. दिस इज योर साइंस ब्लॉक, दिस इज योर लाइब्रेरी. ये कोंडवा रोड जो मेन जाता है, यहाँ पर तुम्हारी एकेडमिक्स क्लासेस चलती है. कि मतलब बेसिकली इतनी सी फिल्म में जितना इंडिया दिखा सकते थे वो दिखा दिया. इतना 7000 एकड़ में, मतलब ऐसी फैसिलिटी समझ रहे हो. बहुत कुछ. बेस्ट खड़गवासला लेक वगैरह, नेवल गेट्स के लिए, एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स ट्रिप है पूरी. नेक्स्ट, like we told you, National Defense Academy, Tri-Service Academy in the world. And as they mentioned in the stats, 7,000 एकड़ में होती है. It is main building is Sudan Block. इसको सुडान ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुडान गवर्नमेंट ने फंड किया था in 1945 when India was made. Sudan government funded that building. That is why it is called Sudan Block. तो बस एक थोड़ा जनरल Around India 1200 cadets होते हैं इंडिया में every year. 400 come in, 400 pass out. So roughly strength is around 1200. और these are some जो buildings है cadets में से वहाँ पे हट हाँ, तो you are divided in 18 squadrons. जैसे तुम्हारे स्कूल में होते हैं ना हाउसेस, अशोका गांधी, नेहरू टेगोर ऐसे है ना. चार हाउस होंगे. तो हमारे क्या होता है, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, रोमियो तक. देयर 18 स्क्वाड्रंस. तो हम इन्हीं 18 स्क्वाड्रंस अपनी स्क्वाड्रंस के लिए, आई एम फ्रॉम पैंथर, है ना, के लिए निकालते हैं. तो फौज का बेसिक वो क्या होता है, नाम, नमक, निशान. ठीक है, नाम, तुम्हारा नाम और जो तुम्हारे से रिलेटेड है लोग, योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स और फैमिली जो भी है, नाम उनका, तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो. निशान तुम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? निशान जो तुम्हारा तुम स्क्वाड पहनते है, हो वहाँ पे तुम्हारा हाउस को रिप्रेजेंट करते हो. तुम अपने और हाउस तुम्हारा के निशान है. और नमक तुम वही जो तुम Small अपने का उसका कलर. खा रहे हो, आप ये लो. फौज का कलर. So, like I told you, 3 years of training in National Defense Academy. Then there are 6 terms. तो हम क्या करके आए? I'm in my 5th term. He's also in his 5th term now. तो हमने 2 साल कर लिए ट्रेनिंग. तो there is 5 months of training and 1 month of term break. तो हम अभी वही 5 month की ट्रेनिंग करके आ रहे हैं. Now we are on a term break for 1 month. This is your basically uniform, school uniform जो बोलते हैं ना. मतलब जैसे ये केडी बोलते हैं इसको, खाकी खाकी ड्रेस. ड्रेस बोलते हैं इसको. जैसे ये वर्किंग केडी तुम्हारी वहाँ पे. यूनिफॉर्म ऑफ इंडिया. यू कैन सी दिस. ये हंटर स्क्वाड्रन है, उसके सामने की बिल्डिंग है. यू कैन सी हंटर ना. So it is Hunter Squadron. That is Admiral Karamveer Singh. फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल. हाँ, former chief of naval staff.
एंड देयर आर नॉट जस्ट वन यूनिफॉर्म भाई, देयर आर 10 तो होती हैं 10 यूनिफॉर्म्स होगी, तुम्हारे को मेंटेन करनी पड़ेगी खाने एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। खाने के लिए अलग यूनिफॉर्म, पढ़ाई के लिए अलग यूनिफॉर्म, पीटी के लिए अलग यूनिफॉर्म, खेलने के लिए अलग यूनिफॉर्म, सोने के लिए अलग सोने के लिए सब कुछ अलग, स्विमिंग के लिए अलग यूनिफॉर्म, सब कुछ, हॉर्स राइडिंग के लिए अलग यूनिफॉर्म। नेक्स्ट विंटर्स के लिए अलग, समर्स के लिए अलग। दिस इज पासिंग आउट परेड की 6 नंबर की कॉन्वोकेशन की। नेक्स्ट ना ये जोश पुशअप्स लगा रहे हैं। यू नो दैट इज जोश पुशअप्स। देखा कभी हाउ इज द जोश आर्मी में, सीरीज में देखा होगा जोश भी चलती है एकेडमी भाई। जोश, हाउ द जोश हाइस किया कभी, देखा है कभी किसी को? मूवी तो देखी होगी वो। YouTube पे अवेलेबल है। Excellent. हाँ तो लाइक स्टार्ट से अब तुम इस स्टेज पे हो। फर्स्ट इज योर रिटन एग्जाम। हमारा फोकस क्या होना चाहिए रिटन? रिटन में क्या होता है, अराउंड 8 to 10 लाख, now including girls also appear for written exam, and out of that around 10,000 clear written examination out of 8-9 lakhs, ठीक है। 10,000 और 9,500 कुछ रिटन क्लियर करेंगे। उन सबका एसएसबी होगा 9,500 का। आउट ऑफ दोज अराउंड 600 लकीली और 550 क्लियर एसएसबी, ठीक है। 9,000 में से 550 आ गए। टॉप 487 में 500 सीट्स होती हैं, वो go to India। Anyone knows what is SSB? पता है? 7 days interview. 5 days. 5 days interview होता है। It is सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑफ service selection board. 5 दिन का तुम्हारा इंटरव्यू होता है। मतलब 5 दिन का सिर्फ इंटरव्यू नहीं होता, it is a basically 5 days personality test. So there are 2 aspects for clearing NDA. When your intelligence, that is your written part. ठीक है? अब ये नहीं है कि तुम सिर्फ जो रैंक 1 है वही करेगा क्लियर, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। वहाँ पे नॉर्मल बंदे सर कितने मार्क्स आते थे? मैं था लिटरली आई वाज हियर ओनली 12 साल में यहाँ पर हूँ। 12th स्लूट से करी है मैंने। जिंदगी में सिर्फ 2 बार 85% आए हैं, 10th और 12th में, वो भी बहुत मेहनत करके। 70% से ऊपर नहीं देखे मैंने, क्योंकि पढ़ता ही नहीं था ना, मतलब था पढ़ाई से। बहुत मेहनत करके 85% आए थे 10th में, और बहुत ज़्यादा ही मेहनत करके 12th में आए थे 85%। आई एम नॉट मेडिकल, ठीक है। सो आई वाज नॉट गुड स्टूडेंट, आई वाज एवरेज था पूरा। You need to be average in every field. एवरेज फील्ड में एवरेज आना था। हर फील्ड में एवरेज है। ऑल इंडिया टॉपर नहीं चाहिए, वो पार्थ सैनी सर याद है निकले थे स्लूप से, वो नहीं चाहिए हमको। ना हमें कोई मोटा वाला चाहिए, ऐसे कोई साइंटिफिक वाला। वी वांट अ गाय हु इज एवरेज इन अकेडमी, एवरेज इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को खेलता हो, रनिंग करता हो, थोड़ा एटीट्यूड उसका अच्छा हो, उसका करंट माइंडसेट ना हो। वी वांट अ गुड गाय, उसका मोल्ड कर सके। What is India? They are basically training you to become officers so that you can lead men in war. ठीक है? ये है बेसलाइन। तुमको ट्रेन किस लिए किया जाता है? ताकि तुम अफसर बनो, अपने पीछे जो भी है तुम्हारे फौजी, you can lead them, right? अब तुम उनको लीड कब कर सकते हो भाई? जब तुम खुद सही हो, ठीक है? If you're not right as a person, not right as a leader, तो फिर हाउ विल यू लीड? how will you lead? कोई no one will follow you, ठीक है? ये बात है। तो देयर आर, यहाँ पे हमें स्टैट्स बता दी 462 कैडेट्स रफली करते हैं, मुझे तुमने बताया था। 400 सीट्स होती है रफली। अब तो गर्ल्स के लिए गर्ल्स के लिए बढ़ गई है। हम उस बैच से इंडिया 148, तो फर्स्ट जो फीमेल बैच है वो मेरे हमारे कोर्स साथ में ही है, है। हमारे साथ ही देयर है। आर 18 गर्ल्स इन आवर बैच राइट नाउ। 32 सीट्स अब बढ़ चुकी है गर्ल्स की सीट, तो अच्छी बात है। Girls- गर्ल्स के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल है उनको, क्योंकि सीट्स कम है तुम्हारे पास। उनको Only 32 ज्यादा seats. मार्क्स चाहिए, उनको ज्यादा Boys मार्क्स के चाहिए। गर्ल्स ये को बात। जाने के लिए। फिर सक्सेस रेट तो चलो हाँ जो भी ये है। चलो, जिस अभी चीज स्टैट्स देखे कभी नहीं होना कि हाँ ये ऐसा है। 0.15 जाते हैं, ऐसे नहीं होता। आईआईटी का सक्सेस रेट पता है कितना? उसका होता है 7%, नीट का होता है 8%। इंडिया का लोग देखते हैं 0.5%, तो इसलिए मैंने बोला ना क्यों नहीं क्लियर करते, ये हार मान जाते हैं। पहली बंदा हो जाता है यार, इतना है कैसे होगा, नहीं कौन होगा। करेगा? We just give the paper. फिर देख के तो देख के देखो, तुमको भी अच्छा लगेगा। मुझे 2.5 साल लगे इंडिया क्लियर करने में, इसको रफली 2 इयर्स लगे। वी आर नॉट इन पहले अटेम्प्ट में निकल गए इंडिया। वी डिडंट गिव अप बस, We didn't give up. कोशिश करते रहो। Then after completing 4 years, go to you get your respective ranks. Next one, passing out period. दिस इज व्हाट यू विल डू ये व्हेन यू passing out, तुम ऐसे pass out दिस होते इज ट्रेनिंग पीरियड ऐसा है। हो। जनरली खेतरपाल परेड ग्राउंड है, इसमें ड्रिल करते हैं। बहुत बड़ा है, दिस इज बहुत ज्यादा परेड बड़ा। ग्राउंड ऑफ इंडिया। एनसीसी बहुत करेगी बड़ा है। तो पता होगा परेड क्या होती है। परेड क्या होती है, ड्रिल क्या होती है, परेड। तो दैट इज सेंडियन एकेडमी, बहुत ज्यादा सही है। नेक्स्ट है ये खड़गवासला लेके यहाँ पर नेवल कैडेट्स ट्रेन होते हैं। दे बोट पुलिंग दिस आर कॉल्ड डीके वेलर्स, तो हम बोट पुलिंग सिखाते हैं। जैसे वी आई डू दिस थिंग्स। ये हम नेवल sailing कैडेट है, करते मैं हैं। आर्मी कैडेट हूँ। दिस इज अ बोट नेम है डीके वेलर, सो ये पुलिंग बोट है, हम पुल करते हैं साथ में, और बहुत अच्छी सेलिंग कयाकिंग, सेलिंग करते हैं, शिप्स नेविगेशन बहुत मजा आता है। कॉन्स्टेलेशन वगैरह सारा इनको सब मजा आता है पढ़ने में। नेक्स्ट करना ये वही एकेडमी वाली। Academy नेक्स्ट थोड़ी
फॉर सेम बेनिफिट्स Obvious motivation तो तुम्हारी- होता है कि क्या करना है, पेपर कैसे देना. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जाम दैट कम्स आफ्टर 12th दैट यू कैन गिव व्हाइल यू आर अपीयरिंग इन 12th. हाँ. ये बात है, ठीक है. तुम इससे पहले कोई और एग्जाम नहीं दे सकते. योर एज लिमिट इज फ्रॉम व्हाट 16 and a half years to 19 and a half years प्लस योर प्लस 2 शुड बी पास. तो should be pass और you should be appearing मतलब तुम boards अपीयरिंग देने वाले हो. बोर्ड्स देने वाले हो, ये बात है. तो जो boards 12th में देने कौन कितने हैं यहाँ पर? 12th वाले. तो नवंबर में पेपर होता है, जो वो नवंबर दे या सकते something हो. है, तुम वो दे सकते हो. विल बी एलिजिबल फॉर दैट एंड दैट विल काउंट. ठीक है, तुम वो दे सकते हो. तो सबसे पहला पेपर है, देन फ्री ट्रेनिंग, कुछ खर्चा नहीं है वहाँ पर, बस तुम्हारा खुद का खर्चा जो तुम खाने पीना करोगे. थोड़ा बहुत तुम्हें होता है ना जैसे यहाँ पे करती होंगे, मंगवाती होंगे कुछ समझ कहीं से. रेस्ट एवरीथिंग वहाँ पे मंगवाते नहीं, यूनिफॉर्म्स वगैरह जो भी है, सारी बहुत सारी चीजें सरकारी मिलती है. सब खाना पढ़ाई, पीना, पढ़ाई. education, hostel, food. अपना सब. When you go to India, you get your separate cabins. You go to India, you'll get your room. आप अपना तुम्हारा पढ़ाई के लिए टेबल वगैरह. If you are army navy, you'll get a laptop, you'll get a computer to study. अब तो मिलता है, सबको अब मिलता मिलता है. है. And you'll get your bed, you'll get uniforms, you'll get अलमीरा मिलेंगी, तो proper room होगा तुम्हारा, तुम्हें maintain करना है. Power and ranks, you'll have power. You'll have power in the sense कि तुम्हारे बोलने पे करना पड़ेगा किसी को भी. अब 12th वाला है कोई, अब वो हमारे ऐसा होता है कि now if you are getting into this organization hierarchy, तो भाई हाँ, Foundation अब तुम्हें है. एक चीज बताते हैं, तुम्हें पता नहीं होगी, तो तुम्हारी गलती नहीं है. जैसे आप 12th वाले हैं यहाँ पे बैठे हैं, यू आर सीनियर मोस्ट इन स्कूल, तुमसे सीनियर कोई नहीं है, सब तुम्हारे जूनियर्स हैं. तो इसका मतलब तुम स्कूल के बाप हो. बाप का मतलब क्या है? यू आर सीनियर मोस्ट, तो तुम्हारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हारे जूनियर्स के लिए. और if you कोई tell junior anything fail to हो the रहा है, general, तो वो तुम्हारी गलती है. जो फील हो रहा है, अगर कोई जूनियर्स की लड़ाई हो रही है, तुम्हारी गलती है. how it is in academy में हाँ, बता आप रहे हैं. एकेडमी में ऐसा होता है कि अगर सीनियर के सामने लड़ाई कैसे कर सकते हैं जूनियर्स? इतनी हिम्मत कैसे आ रही है और इतनी रिस्पेक्ट नहीं है क्या? अभी अगर सीनियर ने जूनियर कुछ बोल दिया ना हाँ. कि तू ये करेगा, तो वो करेगा. वो बोलिए ना कि 10 मीटर से पूल में कूद जा. कूदेगा वो, ठीक है. और ये इसलिए नहीं कि डर है, रिस्पेक्ट फॉर सीनियर्स. हाँ. लाइक वी हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर सीनियर्स. मेरे को सीनियर कुछ बोलता है, मतलब सीनियर ऐसे फालतू में नहीं बोलेगा. He'll eventually हाँ. try to teach you something. सीनियर्स भी भाई अच्छे रुको होते हैं. रुक रुक, वो चाहे उसका तरीका कैसा हो, but eventually realize Like you you have become to- senior. this is हम भी senior juniors thing. थे एक टाइम, हम बजे हम. हाँ, हम भी बजे अच्छे खासा पर बजे. अब सीनियर बन गए, अब लगता है कि नहीं यार करना पड़ता है, जरूरी है. जरूरी है. लाइक तुम्हें भलाई के लिए करते हैं वो, ऐसा नहीं होता. अब ये नहीं है कि तुम लुक जाओगे और वहां जाके 12th वाला हूँ, इधर 10th वाला हूँ. ऐसे नहीं होता. मतलब ख्याल रखो, प्रॉब्लम है, बट मेरे को पता, मैं करता हूँ. क्या हो गया, पैसों की प्रॉब्लम है, पढ़ाई की प्रॉब्लम है, क्योंकि टेंशन निकली और तुम्हें पता है कैसे टैकल करना है. मतलब if you are getting into this, if you plan on getting तो ये into सीखना this, पड़ेगा. तो तुम्हें ये इतनी सेंस रखनी पड़ेगी, जो मेरे सुपर वाला है वो मेरा बाप है. बाप है वो, मेरा Simple- भाई, simple बड़ा language. भाई है. बड़ा मेरा भाई छोटा है, वाला, मेरा वो छोटा मेरा वाला ख्याल भी छोटा रखेगा, वाला. वो मेरे को बजाएगा भी, वो सब कुछ करेगा. ठीक है, आई कांट क्वेश्चन हिम. हाँ. मतलब यू कैन क्वेश्चन विद Try to indulge this in school. like 12th वाला हूँ मैं, तुम्हें help अगर तुम्हें तो थोड़ा अभी से ये अच्छा सेंस रख लेना कि ये नहीं कि वहां जाके कैसे बोल दिया मेरे को, हाँ ये क्या है वो. हाँ, ऐसा होता है ना 10th वाले 12th वाले. होती है हमारे टाइम भी. कैंटोनमेंट फैसिलिटीज तो पता ही होगी, कैंटोनमेंट फैसिलिटीज क्या होता है, कैंप जैसे एरिया. अम्बाला कैंट है यहाँ पे, और यहाँ पे जाके काफी कैंटोनमेंट एरिया है, चंडी मंदिर वगैरह. हम देखते हैं काफी अच्छे बेसिस होते हैं, साफ सुथरे हैं. तुम्हें स्मार्ट फूड मिल जाते हैं, थिएटर मिल जाते हैं, अच्छे रहना खाना तुम्हारी फैमिली को मिलेगा. देन योर कैंटीन फैसिलिटीज, कैंटीन होता है, सीएचडी CHD कार्ड पता ही होगा. सस्ते मिलता है सब कुछ. मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज फॉर यू एंड योर फैमिली. फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री अकोमोडेशन, तो तुम्हें रहना को मिलेगा घर में. सैलरी अलाउंसेस. अब क्या होगे तुम, जब तुम चौथे साल जाओगे, you'll be at around कितने 21 साल के होगे जब तुम 21-22 साल के होगे. ठीक है, अगर जब तुम अपने 4th ईयर में जाओगे, एंड फ्रॉम दैट एज ओनली यू विल स्टार्ट गेटिंग योर पे, हाफ पे एक साल के लिए. वो कितने होते हैं, अराउंड 56,000. 56,000 मिलेगा तुम्हें. बाकी जो आधी पे होती है वो तुमको एंड में मिलती है. ऐसे सोचो तुम बीटेक कर रहे हो किसी कॉलेज में हो, तुम तो 4 साल की बीटेक होती है, 3 साल हो गए, और तुम 7th सेम में आए, तो तुम्हें 7th सेम में एनडीए में ऐसा होता है कि तुम्हें स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा. लाइक 56,000 में शुरू हो जाएगा. मैं ऐसे समझो कि इंटर्नशिप लग गई कहीं पे बाहर जाके तुम्हें. और जैसे तुम पास आउट होगे, योर पे विल बी अबव 1 लाख. 1 लाख 1.25. दैट इज जस्ट पे, एंड अलाउंसेस अलग से मिलेगा. आराम से, मतलब अगर तुम कहीं फील्ड एरिया में जा रहे हो, सर्विसेज वगैरह मिलेगी, मतलब तुमको ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री मिलता है, तुम्हारे पैसे कहीं खर्च होते हैं. जैसे आई एम इन नेवी, सो इफ आई गो इन सबमरीन तो एक्स्ट्रा 25,000 सबमरीन के. इफ आई गो इन दिस बहुत ज़्यादा मैं गया हूँ कहीं पे सेल करने, तो उसके अलग पैसे लाइक मिलेंगे. आई मीन आर्मी, अगर मैं सियाचिन जाऊंगा तो हाँ. मेरी प्लस हो जाएगी, डबल सेल हो चेंज जाएगी. आएगा. क्योंकि मैं थोड़ी इंटेंस फील्ड पोस्टिंग काट रहा हूँ, उतने वैसे मतलब बीच अलाउंसेस ही होते हैं.
गेट पर्क्स एंड बेनिफिट्स। और तो पैसों सबसे के भी बड़ा फायदा क्या होता है ना, पैसों की भी कोई नहीं, तो तुम 22 साल की उम्र में Stable. एटलीस्ट 1 लाख कमा रहे होगे, हाँ, और वो जो कि पैसे तुम्हारी जेब में जाएंगे, खर्च नहीं होंगे इतने। जो तुम देखते हो ना से सर जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट में से सीयू जाते हैं, चित्कारा जाते हैं, जेपी जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, एलपीयू है, वहाँ तुम जाओगे तो तुम पैसे इतने बर्बाद करोगे अपने, 20 लाख नहीं देते, 15-20 लाख अपने माँ बाप के खर्च हो गए। इंडिया में कुछ नहीं देते तुम, ठीक है, मैक्सिमम साल का तो 25-30,000, वो भी तुम्हारे अपने लिए, ठीक है। बाकी फ्री ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, मतलब मैं कमीशन नहीं हूँ, मैं भी कैडेट ही हूँ, पर मैं अपना कार्ड दिखाता हूँ ना भी किसी वहाँ पर टूल पे, तो कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं लगता। और बाई चांस पुलिस वाला पुलिस वाले पकड़ लेते तो भी उनके कार्ड दिखा के थोड़ा कार्ड पैसा बच जाता है, थोड़ा लिफ्ट दे देते हैं, लिफ्ट दे देते हैं। यस इंडिया से कम होता है। देन एजुकेशन, यू गेट बेस्ट टीचर्स देयर इन इंडिया। तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी इंडिया में, ऐसा नहीं कि तुम आई एम परस्यूइंग बीएससी केमिस्ट्री अलोंग विद माय ट्रेनिंग, उसके साथ साथ मैं फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ रहा हूँ, चाइनीज, ठीक है। दे मेक यू परस्यू दिस एटलीस्ट वन फॉरेन लैंग्वेज, रशियन, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, इनमें से, ठीक है। उसके साथ तुमको सर्विस सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, जो टैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं सारे, एमपीओ सर्विस, जो भी अलग अलग रिस्पेक्टिव हुआ है ना। स्पोर्ट्स, बहुत स्पोर्ट्स होता है अकेडमी में, और स्पोर्ट्स का जो माहौल होता है ना, और एवरीवन हैज टू प्ले, हाँ, लाइक एवरीवन हैज टू प्ले, यू डोंट हैव अ चॉइस। ऐसा नहीं स्पोर्ट्स है ना सारे, हर एक बंदा हर एक स्पोर्ट खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है। और ऐसा होता है कि खून वो निकाल देते हैं जीतने के लिए, मतलब वही ना, नाम नंबर निशान बोला स्क्वाडन के नाम पे। तो हमारा वॉलीबॉल था, तो इस बार मेरा स्क्वाड वॉलीबॉल चैंपियन है वॉलीबॉल में, फ्रांस। तो मजा आया, पूरा माहौल होता है, जोश का माहौल होता है पूरा, हर बंदा मेहनत करता पूरी जान लगाते हैं। जैसे हाउस मैच, इंटर हाउस मैचेस होते हैं, मजे नहीं आते, पूरा चिल्ला चिल्लू के है ना, जिताना है। तो सब स्पोर्ट्स तुमको बहुत टॉप Opportunities फैसिलिटीज मिलेगी। ग्राउंड्स वगैरह बिल्कुल टॉप नॉच, स्विमिंग पूल्स बहुत बेस्ट, 100 मीटर्स तो ओलंपिक से स्कूल मैंने बोला 7,000 एकड़ का होता है, 7,000 एकड़ में बहुत कुछ ज्यादा था भाई, पता नहीं 10 तो फुटबॉल फील्ड है, बहुत ज्यादा बास्केटबॉल कोर्ट, मेरे को लगता है जहाँ पर खाली जगह दिखती है वहाँ वहाँ पर कुछ ना कुछ गार्ड देते हैं, कुछ ना कुछ पूल वगैरह। देन योर एडवेंचर फैसिलिटीज, स्कूबा डाइविंग एंड ऑल, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, माउंटेन ट्रेकिंग सब करने को क्लब्स होते हैं इंडिया में, जैसे यहाँ होते हैं ना एसयूपीडब्ल्यू होते हैं, एसयूपीडब्ल्यू में तो क्या ही होता होगा, होते हैं ना, मतलब ऐसे। तो वहाँ you get sailing, kayaking, rock climbing, scuba diving, मतलब तुम्हें मजा आएगा, painting, Adventure dance, music, सब कुछ, western music, classical music, बहुत मजा है। Horse riding and polo, horse riding Water compulsory polo, है, बहुत horse मजा riding everyone will learn, because it is a gentleman हाँ, वो, like you should know how to ride a horse, थोड़ा gentleman ऑफिसर ट्रेनिंग के मतलब officer training, व्हीकल फैसिलिटीज थोड़ा मिल जाती हैं जब यू बिकम ऑफिसर। फिर vehicle facilities तो चलो, parties बहुत parties होती है भाई, अभी नहीं, कैडेट फेज में कम होती Cadet phase में कम होती है, पर when you get commission ऑफिसर बनने का बहुत पार्टी ज़्यादा ऐसे नहीं party होती कि होती है। तंबू गाड़ दिया गया शुरू हाँ, प्रॉपर पार्टी अच्छी पार्टी होती है, क्लासी पार्टी, लाइक और ड्रिंक्स you व्यवस्था have होता है। your proper ceremonials on, और यूनिफॉर्म में जाते हो तुम। और सुंदर ceremonials होते हैं भाई, बहुत सुंदर ceremonials होते हैं आर्मी में, ठीक है। सारे मतलब Traditions होती मेल हैं। ऑफिसर्स, फीमेल ऑफिसर्स जो भी आते हैं, हम देखते रहते हैं, हम तो ऐसे देखते रहते हैं अभी, ठीक है। हाँ, One day अभी देखना पड़ेगा। अभी देखना पड़ता है, बहुत पार्टीज होती है भाई उनकी। देन the lifetime pension पेंशन मिल गई you get for lifetime, अराउंड 70-80 when you retire, गुड पेंशन। compensation in railways and air travel भी मिलेगा भाई। स्किल डिमांड इन प्राइवेट सेक्टर, अभी ये क्या है तुम्हारा, बेसिकली जब तुम रिटायर हो जाते हो अपनी सर्विस के बाद, तो तुमको अगर प्राइवेट सेक्टर में आना है कभी, तो इफ यू आर कर्नल रिटायर्ड, तुमको सीधे यहाँ पर आके किसी सिक्योरिटी मैनेजमेंट में बिल्कुल टॉप पे पोस्ट मिलेगी, मैनेजर वगैरह से। बस फिर फौज से आगे पेंशन भी आ रही है, प्राइवेट सेक्टर में आराम से चेयर लगा के बैठ जाना, 50-60 लाख मिल जाएंगे आराम से। अगर तुम करना चाहते हो जॉब, जो तुम करना चाहते हो प्राइवेट में, मतलब ऑप्शन है। मेन अब लास्ट रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली मिलती है, तुम किसी भी यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर को देख तो आ गया, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, इतनी ये तुम सोच भी नहीं सकते। कोई बोलना जैसे कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है, बोले सर मैं तो चल छोटी बात कर ऐसे ऐसे फैमिलीज काट में ये जाओ कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो, सिर्फ तुम्हारे नहीं, वही है तुम्हारे से कनेक्टेड जो भी लोग हैं। हाँ, अब ये तुम्हारे लिए एलिजिबिलिटी मैंने बताया ना, 12th पास एंड है, और अपीयरिंग यू शुड बी। अब एक चीज़ होती है, जैसे अगर तुम्हें आर्मी में जाना है, जैसे तो आर्मी के लिए होता है कि तुम्हारे पास मैथ्स होना चाहिए, और अगर तुम्हें एयरफोर्स या नेवी में जाना है तो तुम्हारे पास मैथ्स और फिजिक्स दोनों होना चाहिए। सो लाइक इफ यू आर अ कॉमर्शियल मैथ्स गाय तो सिर्फ तुम आर्मी में जा सकते हो, और इफ यू आर अ पीसीएम और पीसीएमबी तो तुम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहीं भी जा सकते हो।
तुम अब देख सकते हो तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो, तुम्हारे ऑप्शंस क्या है। जैसे यहाँ पे कॉमर्स वाले बैठे होंगे विद मैथ्स वाले, तो तुम सिर्फ आर्मी में जा सकते हो, और जो PCM वाले हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, आर्मी। जनरली 3 से 5 अटेम्प्ट है तुम्हारे पास अभी। 12 के पास 19.5 तक अराउंड 3 से 4 अटेम्प्ट्स चार क्रॉस attempt है होते हैं, तुम्हारे पास। ठीक है ये होता है। और चलो अप्लाइंग का व्हेन वी इवेंचुअली तुम्हें पता ही होगा कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई planning की जरूरत नहीं। नेक्स्ट ये तुम्हारा हुआ है एडमिट कार्ड मिलता है एग्जाम। हाँ ये रिटन का क्या हिसाब है तुम्हारा? रिटन इज ऑफ मेन 2 पार्ट्स है ना, योर मैथ्स एंड गैट। मैथ्स तो मैथमेटिक्स हो गया, एंड गैट इज योर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें तुम्हारा आ गया ये साइंस, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, ये 3 होते हैं। हाँ ये और ये जनरल में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा, इंग्लिश। और ये सब पता है, ये जो तुम्हारा 11 12 में पढ़ा है ना, हाँ। बस हो गया। जो तुमने 12 तक पढ़ा है ना स्कूल में, 10वीं तक तुमने सब पढ़ा है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो आएगा। 11 12 का मैथ्स आएगा। मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, कोई कंपटीशन बता रहा हूँ रिटन इतना मुश्किल नहीं होता इसका, क्योंकि इसके बाद तुमको एसएसबी देना पड़ता है, समझ लो। मैंने क्या बोला, उनको टॉपर लोग नहीं चाहिए वहाँ पर कि हाँ मेरे को बस पढ़ाई करने वाला चाहिए, ठीक है। तो आई टेल यू, इफ यू पुट इन ना, थोड़ी घिसाओगे अपनी, थोड़ी मेहनत करोगे, यू कैन इजीली क्रैक रिटन एग्जाम, ठीक है। और ये कि बंदा वही कर पाता है जो हारता है, जैसे जुनून। लाइक आई वाज मेड फॉर इंडिया, मेरे को ये पता कि इंडिया करना है तो इंडिया करना, कुछ करने नहीं। ड्रॉप लिया उसके लिए, उसके बाद भी नहीं हुआ, फिर एक और ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ, फिर एक और किया, फिर हुआ। दैट इज अपॉन यू ड्रॉप वगैरह का, और तुम्हारे ऊपर, हमारे टाइम पे कोरोना था, घर वालों की बात, हमारे टाइम पे कोरोना था तो मेरे को बोला कर लेना, ठीक, मतलब वो नहीं लेना चाहिए, तो बहुत हाँ बड़ा मैं भी एडवाइस नहीं करूँगा ड्रॉप लेना। मैंने भी लिया था ड्रॉप, पर अगर मैं नहीं होता ना मैं लटक जाता लिटरली। मैं तुमको पता ही सक्सेस रेट कितनी है, अब ऐसा नहीं है कि मैं सबका हो जाएगा, ठीक है। यू हैव टू बी रियलिस्टिक, ठीक है। यू शुड हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। तो रिटन एग्जाम में क्या बोला, मैथ्स एंड गैट। मैथ्स में कितने होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, एंड 120 क्वेश्चंस हर एक कैरी करता है 2.5 करेक्ट मार्क्स, आंसर। और तुमको मिनिमम मार्क्स चाहिए 90 मतलब 100 300 से 100 से 300 में से तुमको मिनिमम चाहिए 90 मैथ्स क्लियर करने के लिए। इसे क्लियर करने के लिए एग्जाम, अगर तुम्हें अच्छी रैंक चाहिए और सिलेक्ट होना है, हाँ मेरे तो 150 तक चाहिए, तो 120 to 150 ले आओ, मार्क्स चाहिए तुम्हें। कितना तुमको चाहिए मैथ्स का। और मैथ्स कुछ भी नहीं है, लगता है तुम जो 12th में पढ़ोगे उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो तुम्हारे ऊपर है तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। मैथ्स पढ़ना है, मैथ है, और गैट के बाद इंग्लिश साइंस वही प्लस 1 प्लस 2 लिखोगे। अगर तुम्हारे मार्क्स आते हैं अराउंड 120 इन मैथ्स, तो तुमको कितनी चाहिए, अराउंड 360 मिनिमम इन गैट। गैट के 150 क्वेश्चंस होते हैं, और एक मार्क्स का 4 मार्क्स होता है, तो एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोनों। नेगेटिव मार्किंग वजह से बहुत मजा आता है, तो यू शुड नो हाउ टू आंसर द पेपर। तुम्हें मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, तुम्हें मतलब थोड़ा दैट विल कम आउट इन योर मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करोगे, उतना ही क्लियर होते रहेगा, ठीक है। दैट इज द थिंग। अब है एसएसबी आता है इसके बाद। एक बार रिटन क्लियर कर लिया, देन व्हाट कम्स एसएसबी, योर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो ये तुम्हारा 5 दिन का होता है। एसएसबी के बारे में पता है क्या क्या प्रोसेस होता है एसएसबी में? कोई आइडिया नहीं ना? 5 दिन का होता है। 5 दिन में तुम्हारे बेसिकली इज अ पर्सनालिटी टेस्ट। तो फर्स्ट डे इज योर स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है? अब जैसे तुम यहाँ पे आए हो 70 लोग, रफली आई एम टेकिंग 70 ऑफ योर कमेंट। अब मेरे को सिलेक्ट करनी है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 70 का टेस्ट लूंगा, इतना नहीं है, और मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा। सो आई विल टेक ओनली 20 बेस्ट ऑफ 20 फर्स्ट डे। वो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद डिसाइड होगा कि कौन से 20 हाँ। रखने हैं, कौन से। मैं 70 का टेस्ट तो लूंगा, अराउंड 40% रिटेंशन रेट होगी ऑन डे 1। बाकी वो बोलेंगे जो बेस्ट 20 होंगे ना, गो होम। वो 5 दिन रुकेंगे, बाकी जो 50 होंगे उसी दिन भाग पहले दिन उनको भगा दिया जाता है, ठीक है। पहले दिन भगा दिया जाता है। फिर जो 20 बचे उनका 5 दिन टेस्ट होगा। ये होता है। और स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है तुम्हारा? बेसिकली तुमको जल्दी एक्सप्लेन करता हूं मैं एसएसबी का प्रोसेस। स्क्रीनिंग टेस्ट इज और उसमें साइड टेस्ट होगा तुम्हारा। साइड टेस्ट में क्या होता है, तुमको एक फोटो दिखाएंगे, कुछ भी रैंडम फोटो 30 सेकंड्स के लिए, then it will go away after 30 seconds, then for 4 minutes you'll have 4 minutes to write a story on it. अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे को फोटो देखिए क्या है, एंड इट शुड हैव अ प्रॉपर मेन कैरेक्टर, बिगनिंग क्या है, बीच का प्लॉट जो होता है, क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स जो होता है, और एंडिंग, ठीक है। 4 मिनट में तुमको ये करना है। 4 मिनट जैसे हो गए, दिल टेक अवे योर शीट्स। तुमको अब 12 से 15 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, एक एक करके ग्रुप जाएगा अंदर। सबसे पहले एक एक करके नरेट करेगा हर बंदा अपनी स्टोरी। मतलब उसने बस 4 मिनट में लिखा, उससे एकदम से शीट ले लेते हैं, तो उसको याद होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा 4 मिनट में। तो एक एक करके बंदा नरेट करेगा प्रॉपर स्टोरी,
और जब उसने नरेशन कर दी 15 जनों ने, तो जो एसएसएस बैठे, सामने 3 एसएसएस बैठे होते हैं, तो बोले आओ कि अच्छा नाउ डिस्कस अमंगस्ट योरसेल्फ एंड गिव मी आउट अ कॉमन स्टोरी। ये बात है। अब ये यहाँ पर मेन चैलेंज होता है। अब 15 जने हैं, 15 स्टोरीज है, अब तुमको एक स्टोरी निकालनी है, आपस में डिस्कस करें, और सब बंदा जाएगा कि मेरी स्टोरी है। ऑब्वियसली जाएगा बंदा, एसएसएस पे इंप्रेशन आएगा, यहाँ है ग्रुप ने इस बंदी। अब अगर तुम वहाँ स्टैंड आउट करेंगे ना, इफ यू आर एबल टू मेक योर पॉइंट देयर, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुमको अपना ही पॉइंट प्रेजेंट करना है। मतलब यू हैव टू गो विद द ग्रुप, दैट इज अ ग्रुप डायनामिक्स। मतलब बहुत ट्रिकी चीज होती है इसमें। तुमको अपना भी प्रेजेंट करना है, तुमको इस साथ वाले का भी दिखाना है, इसका भी लिफ्ट करना है, और एक कॉमन स्टोरी निकालनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सबको नीचे दिखा के हाँ। मैं सबसे बेस्ट हूँ यहाँ पे, मैं आऊँगा। देखो जो सबसे ज्यादा बोलता है वो भी बाहर होता है, हाँ। जो कुछ नहीं बोलता वो वो भी कहावत बाहर सुनिए ना, मछली क्यों फंसी, पता है किसी को? क्योंकि उसने मुंह खोला। तो ऐसा होता है, जैसे मैंने स्टोरी बनाई है, पर अंशु की स्टोरी मेरे से अच्छी है। हाँ, अगर सुनने पता लग जाता है कि हाँ नहीं ऐसी स्टोरी तो मैं बोलूँगा अंशु की स्टोरी को पसंद करो। बोलेगा जेन्युइनली। अब वही नहीं बोलेगा कि नहीं मेरी स्टोरी अच्छी है, मेरी आई मैं है ऐसे। नहीं हूँ यहाँ पे बात, मेरे अलावा कोई नहीं आएगा। मेरे को ये होता है ना ग्रुप का एफर्ट। तो उन 15 में से पूरा का पूरा ग्रुप भी वॉश आउट हो सकता है। वॉश आउट मतलब कोई सिलेक्ट नहीं हो, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ऐसा है। तो डिपेंड करता है ग्रुप डिपेंड करता है ग्रुप पे। वही है, इसमें थोड़ा अलग फैक्टर होता है तुम्हारे साथ कैसे बंदे आते हैं। पर अगर तुमने ऐसी सिचुएशन में अपना पॉइंट प्रेजेंट कर दिया, ऑब्वियसली ग्रुप तुमको दिखा रहा है, बढ़ा रहा है तुमको आगे, दैट विल क्रिएट इंप्रेशन ऑफ एसएसएस। और उनको वैसे ही बंदे चाहिए जो कि स्टैंड आउट करें इन अ ग्रुप। अगर तूने अच्छी स्टोरी लिखी होगी, ऑब्वियसली सब जने सुनेंगे तेरी स्टोरी। एसएसएस ने भी तेरी स्टोरी सुनी है, और अगर ग्रुप वाले ढंग के बंदे हो तो ऑब्वियसली तेरी स्टोरी प्रमोट करेगा। ये बात है। तो ये बात है। तो ये होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। ये फर्स्ट डे। हाँ, ये होता है 40% रिटेंशन, बाकी वो बाहर कर दिए। नेक्स्ट डे होता है तुम्हारा साइकोलॉजी टेस्ट। 3 घंटे का टेस्ट होता है साइकोलॉजी का। इसे तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे 3 घंटे तक, 3 घंटे के लिए कंटिन्यूस तुम्हारा ये एग्जॉस्ट कर देगा पूरा। एग्जॉस्ट कैसे करेगी? जो पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट, वो बिल्कुल छोटा सा पोर्शन था तुमको बस देखने के लिए। अब तुम्हारा मेन टेस्टिंग स्टार्ट होती है 19 जनवरी की। तो व्हाट हैपेंस कि जो मैंने बोला ना, एक पिक्चर दिखाते हैं 30 सेकंड के लिए। एक पिक्चर दिखाएगा 30 सेकंड्स, पिक्चर हट जाएगी, 4 मिनट है, स्टोरी लिखो। 4 मिनट बाद सीधे अगली पिक्चर आएगी। तुम्हें वो 11 पिक्चर्स की बनानी है। बैक टू बैक ऐसे कितना आएगा? 11 पिक्चर्स। तुम्हें 11 स्टोरीज बनानी है। 11 स्टोरीज बनानी है, और वही 30 सेकंड दिखाएगी, 4 मिनट का टाइम। स्टोरी लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, और कुछ भी फोटो डाल देगी वो, ऐसे मतलब रैंडम कुछ भी डाल दे, कुछ भी। तो जो तेरा थॉट प्रोसेस है तुम्हारा, वो दिखता है वहाँ पर कि क्या थॉट प्रोसेस है दुनिया मतलब। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर 12वीं ब्लैंक स्लाइड होती है। ब्लैंक में मतलब तुमको अपनी स्टोरी लिखनी है, जो तुम कोई भी स्टोरी से ब्लैंक साइड आ गई यहाँ पे, तुम्हें अपनी स्टोरी अपनी जो भी तुम लिखनी लिखना चाहो। इसके बाद सीधे नेक्स्ट होता है वैट, वर्ड वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो सीधे इसके बाद जैसे ही खत्म होने तुम्हारे 4 मिनट, आखिरी 12वीं स्टोरी है, टाइम शुरू हो जाएगा वैट का। एक ही पेज होता है पूरा, नेक्स्ट करोगे तुम, उसमें तुमको एक वर्ड दिखाएंगे, जैसे एग्जामिनेशन 10 सेकंड के लिए रहेगा वो वर्ड, तुमको 10 सेकंड में वर्ड देखना भी और उस पे सेंटेंस बनाना है। एग्जामिनेशन 10 सेकंड बाद नेक्स्ट मेडिकल, नेक्स्ट इंटरव्यू, नेक्स्ट रिटन, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड, फैमिली, फादर, मदर, स्कूल, कुछ भी स्कूल, ब्लड, किल, सोल्जर, ब्रेव, डेथ, नेशन, ऐसे ऐसे बैक टू बैक कितने आएंगे वर्ड? 60 वर्ड्स। तुम्हें 60 सेंटेंस लिखने हैं बिल्कुल स्पीड में, बिल्कुल 60 सोचना। सेकंड। अब वही है, अब जो तुम्हारा एग्जामिनेशन सोच के जिस बंदे को जो आता है थॉट प्रोसेस में, क्योंकि उस बंदे ने एग्जामिनेशन को उस हिसाब से देखा है, हाँ, ठीक है। वो अपने माइंडसेट से बनाओगे। तुम्हें क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? जैसे डेथ देख के अब जैसे क्या है? नेचर है, नेचर 2 टाइप का, कोई सोचेगा कि पर्सनल नेचर जो होता है, कोई उस पे लिखेगा सेंटेंस, कोई नेचर जनरल एनवायरनमेंट पे लिखेगा, वो भी तो नेचर ही है ना। मतलब वहां से बंदे का थोड़ा थॉट होता है, प्रोसेस thought क्या process सोचता है? क्या सोचता है। तो उसके बाद तुम्हारा जी नहीं सो वो ओके एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें क्या होता है कि जैसे 30 सिचुएशन दी जाएगी तुम्हें। ऐसा होता है कि सपोज करो तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल, एन एक्सीडेंट हैपेंड, तुम्हारे सामने होता है, एक बाइक से बंदा गिर जाता है, उसको खून निकल रहा है। उसी दिन तुम्हारा मैथ्स एग्जाम है, 11th का 10th का बोर्ड्स का जो भी है। तुम क्या करोगे? तुम्हें बताना है कि आई विल डू दिस। बंदे तुम एग्जाम देने जा रहे हो, क्या प्रायोरिटी है तुम्हारी? तुम बंदे की जान बचाओगे या तुम बंद किसी और बोलोगे चल करो तुम एग्जाम में? तुमको वहाँ पर फनी कहानी बनना कि हाँ भाई मैं तो जाऊंगा, मैथ्स पेपर छोड़ दूंगा, हाँ। बंदे को उठाऊंगा और हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ऐसा तुम करोगे बोर्ड्स का नहीं, एग्जाम है, कोई नहीं करेगा ऑब्वियसली। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी तुम प्रायोरिटी एक साल है। से तैयारी तुम करो। मतलब इतना कर सकते हो कि कोई आसपास बंदा मेक श्योर करे कि उसको ले जाए।
और तुम अपना भाग जाओ मतलब एग्जाम तो मैक्सिमम 5-10 मिनट दे सकते हो उसके बाद में, उसके बाद तुम्हें भी जाना ही है। उसके बाद तुम्हें जाना उसके बाद एग्जाम के बाद देख सकते हो क्या करना है। हाँ कि क्या करना उसका एक कोई सिचुएशन होती है कि तुम मार्केट गए हो और लड़ाई होगी एकदम से हाँ तुम्हारे कि सामने। माल रोड पे लड़ाई होगी हाँ अब तुम क्या करोगे? वैसे इधर आओ, करोगे। हम करते हैं लड़ाई पे हाँ, ऐसे तो लड़ा क्या- घुस ऐसा जाओगे थोड़ा ना, ना घुस जाओगे लड़ाई। तुम देखोगे और निकल जाओगे साइड अपना काम करना है ना। तो लिखो वो कि जो तुम्हारा दिल बोलता आई जस्ट पास बाय। अब जो है वो है, अब जो जेन्युइन है वही है, ठीक है। पर जहाँ करना है वहाँ करना है, ठीक है। जहाँ पे करना है, ऐसे कोई ऐसे नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई अच्छा ये लड़के कर को रहा है परेशान सुबह कर दूंगा, रहा है, ये वो कर रहे हैं, वो किसी कर लड़के रहे को मार रहे हैं, हैं, मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं। जहाँ करना है वहाँ करना है, ठीक है। तो तुम्हारा होना चाहिए दिल उसके बोलता बाद आता है तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा साइक टेस्ट है। इसके बाद वो है। सेकंड डे हो गया तुम्हारा, सेकंड डे हो गया तुम्हारा। फिर आता है तुम्हारा जीटीओ, थर्ड फोर्थ डे पे ग्रुप ये ग्राउंड टेस्ट होते हैं। ग्राउंड टेस्ट होगा तुम्हारा। इसमें क्या होता है कि तुम्हें असेस किया जाएगा कि तुम ग्रुप में कैसे हो, लाइक इफ यू आर अ टीम प्लेयर और नॉट। एक 10 बंदों का ग्रुप बनेगा, 10 40 लोग, जैसे तुम 20 लोग हैं पहले दिन, ठीक है। 2 ग्रुप बना दूंगा 10-20। अब मैं देखूंगा कि वो हर एक बंदा ग्रुप में कैसा है, वो बिहेव कैसे कर रहा है, वो टीम प्लेयर है कि नहीं। जैसे ऐसे ना, जैसे गली क्रिकेट में आता है, मेरा बैट है तो मैं ही करूंगा बैटिंग, तो ऐसा बंदा है या भाई तू कर मैं वो सब करेंगे, ऐसा नहीं चाहिए। एक टीम प्लेयर चाहिए उनको, ऐसे होता है। उसमें ग्रुप डिस्कशन होंगी, 15 मिनट में बैठेंगे, सेमी सर्कल में डिस्कस करेंगे। तुमको अब ग्रुप डिस्कशन जनरल टॉपिक्स पे होती है, हाँ। उनको जनरल अवेयरनेस होती है। कोई एक्टिव इशू चल रहा है उस पे होगा। कुछ भी इशू सकते हैं, जैसे अभी हमारे टाइम पे था रशिया यूक्रेन में था, हाँ कोरोना का था हमारे टाइम पे, तो हम उसके बारे में पढ़ते थे, उसके बारे में डिस्कस करना था। काम तीन तो rounds हमारे में टाइम पे तो उसको एक्सटेम्पोर होता है। You'll be given a topic, you'll have to speak for 3 minutes। कोई भी टॉपिक दे दिया, 60 सेकंड्स मिलेंगे, 3 मिनट की स्पीड हो 3 मिनट स्पीच हो। उसके ऊपर, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे तो बहुत कुछ होता है। फिर तुम्हारे कुछ बल्ली बुल्ली हो गई, ऑब्स्टिकल्स हो गए, वो तुम्हें समझ नहीं आएगा भी, तो समझ नहीं आएगा। मतलब ग्राउंड टेस्ट होते हैं। ग्राउंड टेस्ट होता है, एक होता है ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल कोर्स होता है, तो 10 ऑब्स्टिकल्स 3 मिनट में खत्म करने हैं, फिटनेस के ऊपर होता है। और लास्ट में जीटी इतना रहता है, प्लानिंग फिफ्थ डे इज वगैरह योर तो- कॉन्फ्रेंस एंड रिजल्ट। वैसे ये थोड़ा एलैबोरेटेड होता है सारा। कि तुम्हें लास्ट डे 5th डे पे बस हाँ result कॉन्फ्रेंस में तुमको सिर्फ रिजल्ट पता लगेगा कि जिस नंबर दिस हैव बीन सिलेक्टेड, रेस्ट कैन गो। तो 20 में से 1-2 जो भी बेस्ट होंगे एक दो जो होंगे वो आएंगे, बाकी बाकी घर चल रहे हैं। ट्रायल ये बात है। ट्रेनिंग स्टूडेंट देंगे। और मेडिकल तो चलो तुम्हारे हाथ में नहीं। बाकी जो तुम जैसे अगर तुमको आई साइड वालों को डाउट हो तो आरबी A4 के लिए, हाँ, आरबी के लिए +- 3.5 अलाउड, नहीं 2.5 2.5 प्लस माइनस 2.5 के उसमें गैप अलाउड है, ठीक है। और नेवी एयर फोर्स के लिए 6/60 प्रॉपर आई से, सो यू डोंट, वहाँ पे काफी वो होते हैं। अगर तुम फाइटर में हो, तुम सामने वाला फाइटर दिखेगा नहीं तुम्हें। फाइटर पायलट बनना, फाइटर तुम जेट में हो, तुम्हें दिख ही नहीं रहा कहाँ फाइट, तुम क्या क्या लड़ोगे? करोगे? तुम क्या करोगे? तुम ओशन में तुम्हें शिप नहीं दिख रही, दूसरे तुम क्या लड़ोगे? मेरिट लिस्ट तो फिर वही। अब इसमें मैं लेडीकेट बोल रहा हूँ, जो लड़के हैं लड़कियाँ तो उनको पुट इन मारना है क्योंकि तुम्हारी सीट से सिर्फ 32 लड़कों के लिए 400 सीटें हैं, ठीक ठीक है। पर लड़कियाँ वो सिर्फ 32 मैंने है। बहुत देखी है जो रिकमेंड भी हो जाती है पर वो मेरिट में नीचे होती है। 40 तक नहीं होगी, 50 तक नहीं होगी। तो यू हैव टू पुल वेयर इन रिटन एग्जामिनेशन। हाँ, तो तो वहाँ पे written जो में लड़का है percent ना, score करना है। 400 मार्क्स लेके एनडी क्लियर कर रहा है, उसी लड़की को अराउंड 430 450, फिर एसएसबी में भी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे उसी लड़की को हाँ। सिलेक्ट होने के लिए। You'll have to put in extra. This is a new thing. अब eventually उसको टाइम लगेगा सेटल होने में, but तब तक नहीं होता, तब तक you'll have to put in. Then last में ज्वाइनिंग लेटर में आता है, वहाँ से प्रेसिडेंट हाँ। वहीं से आता है और तुम्हें ट्रेनिंग करते हैं 4 साल में, फिर उसके बाद मॉक्स करते हैं। next में वही जो तुम्हें पेपर का होता था एग्जाम हो यार, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो अगर तुम नहीं देना है एग्जाम ऐसा होता है, अभी तुम्हारा फोकस ही नहीं होना चाहिए एसएसबी उसएसबी, ठीक है। अभी तुम्हारा फोकस क्या है, रिटर्न पढ़ाई क्लियर करो, करना है, ठीक रिटर्न है, क्लियर वो मेन है अभी तुम्हारे लिए। उसका रिटर्न क्लियर करो बस। 5 घंटे का एग्जाम है, एसएसबी बाद में 2 पेपर है 2.5 घंटे की, 5 घंटे का एग्जाम है। पहले पेपर होगा मैथ्स का 2.5 घंटे का 120 क्वेश्चंस, फिर 1.5 घंटे की ब्रेक होगी, फिर अगला पेपर होगा 2.5 घंटे गेट, ठीक है। मैथ्स में आएंगे 120 क्वेश्चन, गेट में आएंगे 150 क्वेश्चन। ये होता है 300 मार्क्स का, ये होता है 600 मार्क्स का, 900 मार्क्स का एग्जाम है। कट ऑफ विल बी अराउंड 330 to 350, ठीक है। और तुम्हें लग रहा है कि बहुत कम है तो ऑल इंडिया रैंक 1 के आते हैं अराउंड 650 मार्क्स रिटर्न, ठीक है। जब रैंक 1 तो तुम जब मॉक टेस्ट दोगे तुमको तो पता पता लगेगा चल कि कैसे क्वेश्चन करने, कितना क्या, किसको प्रायोरिटी देनी, किसको नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था ना इंडिया का, तो मेरे अराउंड 180 आए थे 900 में। जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं इतना वीक था, मुझे पता नहीं चलता इतना टफ लगता था। और जब मैं रिकमेंड हुआ था ना तो मेरे आए थे 430 900 में। तो ऐसी गलती से सीख कर, मेहनत कर पढ़ के
ऐसे प्लस वन वालों के पास टाइम है, प्लस टू के वालों के पास इतना टाइम टाइम नहीं है। प्लस वालों को पढ़ाई शुरू कर दो। ये सब बता दिया मैंने कितने तुम्हें चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होती है। ये AR1 कितना उसको इसके बारे में बताओ। ये एक बात NDA बताओ। 121 है, ये इसके 656 थे जब इसने पेपर दिया था NDA 121। हमारे टाइम पे जो AR1 है उसने एकेडमी छोड़ दी फर्स्ट टाइम में, क्योंकि उससे हुआ नहीं, वो ऑल इंडिया रैंक 1 था, तो वही उसे हैंडल नहीं ट्रेनिंग क्या कर सकते हैं। ट्रेनिंग इजी नहीं होती है, बाद में वो बताते हैं आगे। नेक्स्ट। हाँ ये तुम देख लो 12th वाले और 11th वाले भी। ये बुक से मैंने प्रिपेयर किया था मेरे टाइम में 2 साल पहले। ये बुक है ना जो 14 इयर्स, ये मैथ्स की और इंग्लिश और जीके की है। भाई इस बुक को मैंने 5 बार सॉल्व किया, चार्ट जो है बुक्स में बता रहा हूँ। 5 बार इस बुक को सॉल्व किया। तो इसको आज मैं देखूँ हमको एग्जैक्ट याद होगा कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, बिना बुक सॉल्व किए 5 बार खत्म किया था इसको। तो ये बुक्स मैंने प्रेफर की, तुम इनका नाम देख सकते हो बुक्स, और तुम्हें यूज करनी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए। मेन जो पेपर स्ट्रेटेजी रहेगी तुम्हें कैसे करना है 12th वाले सुन लो। जो मैथ्स की बता रहा हूँ, ठीक है अभी बताइए। सुन लो 11th वाले, तुम्हें भी अगले साल तुम्हें 120 क्वेश्चन है, ठीक है मैथ्स में कैसे क्लियर करना है मैथ्स का सुन लो। 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 75 अटेम्प्ट करने हैं और मैक्सिमम करने हैं 100। 120 नहीं करने हैं, ठीक है ये सारे नहीं करने क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बहुत कोशिश करना +-5 से ज्यादा, -5 मतलब 5-6 क्वेश्चन ज्यादा अगर तुम नहीं। 75 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बहुत है 75 75 सही कर रहा हूँ। हाँ 75 में से 70 सीख होनी मतलब चाहिए। 5 गलत चल पड़ेगी, वो क्या गलत चलेंगे 5 से चलते हैं 5 से गलत चलेगी पर उससे ज्यादा पर 75 तो करनी है अटेम्प्ट और मैक्सिमम 100 जाना है, ठीक है। नहीं। मैं बताता हूँ मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे। 120 में से मैंने किए थे, आई ऑनेस्ट व्यू, मैंने 57 अटेम्प्ट किए थे। पर मेरे को पता था जो 57 अटेम्प्ट किए ना सारे सही थे, मतलब एक भी गलती नहीं। 57 किए पर सही किए सारे, ठीक है। तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन कि कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं। मेरे टाइम पे जब मेरा क्लियर हुआ था 2 साल पढ़ने के बाद, तो 120 में से मैंने 103 अटेम्प्ट किए थे और अराउंड 80-70। तो ये अब तुमको अपने अपना एप्टीट्यूड होता है। अपना एप्टीट्यूड तुमको पता है क्या है, ठीक तुम है। अगर कर सकते हो तो करो। मेरे को था कि मेरे को इतने करने हैं पर सही करने हैं, हाँ। मेरे को नेगेटिव मार्किंग चाहिए, मैंने इतने किए सही किए। उसके बाद NCERT इज बेस, जो तुम पढ़ रहे हो ना अभी 11th-12th में, वो तो बेस है। वो तो तुम ऐसे आंख में तुम उठाओ ना 12 बजे ये क्वेश्चन करके दो, तुम इतने आंसर समझे कि तुम क्वेश्चन करके दो, तो ये टाइम तो ना पर कोई भी पढ़ने पेपर है पुटिंग तो मारना पड़ता है, कोई भी पेपर है। ऐसा नहीं है। अब कंपटीशन पुटिंग नहीं मारोगे तो फॉकल कॉलेज में जाओगे, चितकारा CU JP जो भी है, और वहाँ पे पैसे बर्बाद करोगे, कुछ नहीं करोगे। ये टाइम पे पढ़ लोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। 3 साल बाद तो मजे भी करो यार, नहीं मजे मारो, ये पूरे टाइम पास करो, इतनी पढ़ाई की जरूरत भी नहीं है इसके लिए। हाँ नहीं चाहिए। मजे करो, हमने मजे किए, पढ़ा भी, पर जब पढ़ने बैठते थे तो पढ़ने बैठते थे, जब पढ़ने बैठते थे तो बस फिर फोन साइड में रखो और पढ़ो बस, उसके बाद आराम से सो। फिर ये एक बुक में ज़्यादा 14 इयर्स, ये बुक्स RS अग्रवाल, ये RS अग्रवाल इंडिया मैथ्स के लिए ये बुक फॉलो करना। हाँ। एक ये PYQ, ये 2 बुक्स तुम चार्ट लेना, इसमें बहुत इजी रहेगी, ठीक है। प्रैक्टिस डेली अराउंड 100 to 50 क्वेश्चंस। अब ये अभी मत करना तुम, जस्ट तुम्हारी 12th खत्म हो गई, बोर्ड्स दे दिए, हर रोज कम से कम 100 क्वेश्चन करना मैथ्स के, बस बोल रहा हूँ मैं, और मैक्सिमम 150-200। मैं रोज करता था 200 क्वेश्चन रात, चाहे मैं रात को 10 बजे बैठ के सुबह 4 बजे तक करूँ, चाहे मैं सुबह 12 बजे मैथ्स बेस है पूरा, बेस है, मैथ्स तो बेस है, मैथ के बगैर कुछ नहीं होगा तुम्हारा इंडिया। और वो रोज करनी ही है। और तुम्हें लगता है ना 100 क्वेश्चन कर सकते हो तो तुम्हारा बस मिथ है, क्योंकि तुमने मेहनत नहीं करी है। थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन मार दो भाई, हाँ 1-2 बजे सो, क्या हो गया। 1-2 बजे सोना ही नहीं है, ये टाइम है नहीं तुम्हारा सोने का। हम लिटरली बोलते हैं, अंशुल पता है, we survive on 3 hours of sleep if we are lucky in India, if we are lucky कि हाँ भाई 3 घंटे सोने को मिल गए, और वो भी हमको जमीन पे, कि जमीन मिल गई सोने को, टाइम मिल गया, हम भगवान को थैंक, हमको 3 घंटे मिल गए। we don't get time to sleep in India, दैट इज ट्रेनिंग टाइम होता है, इतना ज्यादा टफ रहता है शेड्यूल। सो अभी तुम सो रहे हो ना, 8 में लगता है 8 घंटे की नींद चाहिए हमको, हम तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमें तो पागल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है। तुम जल्दी उठो, अगर तुम अपनी पीक एज पे होगी, पीक एज पे अभी बहुत कुछ बड़े भी करो, कुछ नहीं कर पड़ेगा। कुछ भी करो तुम, सब ग्रो होगा तुम्हें, ठीक है। एक्यूरेसी नेगेटिव मार्किंग मिलती है, ठीक है। पेपर 1 जो है एटलीस्ट तुम्हें 150 मार्क्स लाने, अगर तुम्हें अगर अच्छी मेरिट में चाहिए, मेरे को श्योर शॉट है कि हाँ अंडर 200 चाहिए ना रैंक, 100-200 यार 100% अगर तुम 150 मार्क्स लाते हो। ये पेपर 1 का बता रहा हूँ। उसके बाद इजी चैप्टर होते हैं जैसे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनरी नंबर्स, तुम प्रिपेयर करोगे तुम्हें पता चलेगा, 12th वाले समझेंगे। बाइनरी नंबर्स होते हैं 11th में होता है, आई थिंक बाइनोमियल थ्योरम, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको मत छोड़ना है, ठीक है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, 3D 2D और इंटीग्रेशन होती है डिफिकल्ट थोड़ी, उसमें मतलब नहीं होते सॉल्व, काफी लंबे होते हैं, तो
तो उनको तुम थोड़ा छोड़ सकते हो, मतलब 1-2 क्वेश्चन, और इनको मत छोड़ो। ये लिख लो, ये इतने हमारे चैप्टर्स के ये वेटेज इतने क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली उतना टाइम देना पड़ता है। हाँ, जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो तुम यहाँ देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के 40 क्वेश्चन आए। फोटो खींच सकते हो, कोई एक बंदा फोटो खींच बंदा शेयर कर photo सकते circulate कर हो, लेना। शेयर कर सकते हो। तो अभी तुम्हें पढ़ रही होंगी 12th में मैट्रिक डिटरमिनेंट्स, इंटीग्रेशन, सेट डिस्ट्रीब्यूशन, वही है तुम्हारा सिलेबस। ये तुम ये चैप्टर फोकस करो, मतलब ये ऐसे चैप्टर्स होने चाहिए कि तुम्हें आंख बंद करके आते हैं, इनमें तुम्हें कोई डाउट नहीं। मार्क्स के क्या है? एक क्वेश्चन वेटेज जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं, उसकी वेटेज 75 टू 80 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री आता है, 30 2D 3D इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें लगता है ना कि बहुत डिफिकल्ट है ये, तो 2 साल हो गया मैथ्स पढ़े हुए, मैं आज भी शायद अब मैं बैठूंगा ना ट्यूशन, अगर मैं पास पढ़ने लगूँ आंख बंद करके मैं हर एक क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि 2 साल बस ये किया आंख बंद करके। नेक्स्ट ले लिया प्रोबेबिलिटी पढ़ना, मैथ्स फोटो दे देना सबने, इसको इन चैप्टर्स पे ध्यान देना, ठीक है 12th में। नेक्स्ट बाकी ये चैप्टर्स हैं, पीएलसी 11th में, डिफरेंशिएशन, सीक्वेंस में, ये नहीं फोकस वेटेज है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट लेते रहो। मैंने बुक बताई ना 14 PYQ, पेपर PYQ ही आएगा, ठीक है, इसमें बस 4 जाना हो 12th वालों के। और हाँ तुम्हारे देखो एटलीस्ट 120 में से जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे 12th बेस्ड होते हैं, रेस्ट आर 11th बेस्ड। ये बताना चाहिए। तो मतलब अगर बंदा 12th में से सीए करता है ना, 120 में से स्टार्ट कर ही लगा, ठीक है, कर सकते हो, तो बहुत इजी है, उसमें पता होना चाहिए क्या करना है। अब आप बात करते हैं पेपर 2 की, जनरल ठीक है। पेपर 1 मैथ्स हो गया तुम्हारा, ठीक है, अब तुम्हारा 90 मिनट्स का ब्रेक है, ठीक है, उसका तुम्हारा पेपर 2 का 2.5 घंटे का 5 घंटे एग्जाम होता है, उसमें तुम्हारे 600 मार्क्स का पेपर है, गेट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, करंट अफेयर्स, ये सब है, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी है, ठीक है, 8-10 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। सबसे इजी है इंग्लिश, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 200 मार्क्स इंग्लिश आएगी। तुम इंग्लिश कब से पढ़ रहे हो? फर्स्ट क्लास केजी से पढ़ते आ रहे हो, तो इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग रखो, अभी 12th वालों पढ़ रहे, अभी भी पढ़ रहे हो इंग्लिश, PYQ खोलो, इंग्लिश में ध्यान देना, 50 में से 50 करो इंग्लिश में, कुछ नहीं आता, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, और क्या आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बहुत इजी होता है यार, जंबल सेंटेंस जंबल ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं 10 क्वेश्चन उसके, बहुत इजी रहता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो तुमने 10वीं तक पढ़ी है वो है, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, बस तुम्हें रिवाइज करना है, तुम्हें मेहनत करनी है उसके लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, पीछे वालों को तुमको सॉल्व करने में, जो तुम पढ़ रहे हो ना, एमसीक्यू में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, या मैथ्स पढ़ रहे हो, ये तुम्हारी एज अ एनडीए की प्रिपरेशन नहीं होगी। आईआईटी नहीं वाले नहीं है कि अच्छा पहले हम 12th पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एलन, फिर वहाँ पे हम वो कोर्स करेंगे 1 साल का, फिर जाके हमारे एनडीए आईआईटी का कुछ होगा, कुछ नहीं है, बस में थोड़ा दिमाग से खेलना है, हमारा इजी क्लियर हो जाएगा। Syllabus of this paper is vast, 99% failed to complete the whole syllabus. मेरा आज तक नहीं हुआ कंप्लीट पेपर 2 का सिलेबस, अब देखो लग रहा है। अब ये तुम्हारे को एक होता है हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करना है। अब मेरे को पता था मेरा स्ट्रेंथ क्या है, इंग्लिश आती है मुझे, मेरी जीके वीक थी और बहुत वास्ट थी, तो मैं ऐसा था कि अगर पेपर अटेम्प्ट करूँगा, जीके के कितने आते 50 क्वेश्चन, मैंने जीके के अटेम्प्ट किए बस 8 क्वेश्चन, 50 में से 8 ओनली, पर मैंने इंग्लिश में 47 किए और 47 सही किए, वही बोल रहा हूँ, 8 किए वो सही किए मैंने मतलब बहुत क्वेश्चन छोड़े जीके में। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है? वही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तुमको पता होना चाहिए क्या टारगेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करो। अच्छा अगर 1 मार्क्स के +4 है, नेगेटिव अगर इतने मिलते हैं मेरे को, तो इतना है, मेरे को इतने में से निकालना है। दिमाग से खेलना, कॉम्पिटिटिव सोच रखना है, +2 नहीं है कि 32 क्वेश्चन आ रहे तो 32 के 32 करके 32 के 32 एक क्वेश्चन छूट ऐसा कुछ नहीं होता, तब तुम करनी होता है। ठीक है, और कभी डरना मत है, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो, मेरा आज तक नहीं होती है, कभी भी नहीं होगा, मैं चाहे पूरी जिंदगी पढूं, इतना सिलेबस होता है इंडिया का, ठीक है, तो इसमें डरना मत। मैथ्स में मैंने बोला 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कम से कम, इसमें करने कम से कम 100 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन कम से कम 100 करके आते हैं, ठीक है, कम से कम 100, मैक्सिमम 120 तक पहुंचे। मेरी स्ट्रेटजी है जो मैं दिखा रहा हूँ, मैंने जो क्लियर किया। नेक्स्ट ये है तुम्हारे पेपर पैटर्न ऑफ पेपर 2, इंग्लिश के 50, फिजिक्स के 20 से 25, ज्योग्राफी के 20 से 25, केमिस्ट्री के 10 से 12, हिस्ट्री के 10 से 12, पॉलिटी और करंट अफेयर, इसमें इकोनॉमिक्स भी आ गई। ये तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम्हें कहाँ फोकस करना है, क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें क्या नहीं पढ़ना है, तुम्हारे ऊपर, ठीक है। सो इंग्लिश पे फोकस करो,
सेम बात बोल रहे हैं हम दोनों, जो ये लिखे वही बोलो। और गैट में सिंपल से सिंपल रहेगा तुम्हारे लिए फिजिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि तुम गैट आर्ट्स वाले नहीं हो। फिजिक्स केमिस्ट्री पे जोर डालो, अभी मैथ्स पे जोर डालो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस पढ़ना है, जो तुम्हें पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, तुम्हारी प्रिपरेशन अपने आप होगी। ये 12th वाले देख लें कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था। मैथ्स में पढ़ता था एक कार्तिक चौधरी से, यूट्यूब पे चैनल उनका इंडिया में। तुम ये नाम लिखोगे तुम्हें अपना पूरा इंडिया का वीडियो तो 100 चैनल जाएगा। 100 चैनल है वहाँ पे। यूट्यूब एंड अकेडमी जाओ, वहाँ पे लोग पढ़ा ही जा रहे, पढ़ाई और लोग पढ़े जा रहे हैं। वहाँ जाके देखो, इंग्लिश मैंने यहाँ से पढ़ी थी, ज्योग्राफी वगैरह मैंने यहाँ से पढ़ी थी। ये 2 साल पहले किया, मुझे पता नहीं कहाँ से पढ़ता हूँ, पर तुम थोड़ा देख सकते हो तुम्हें करना है। नेक्स्ट एसएसबी का जो मिलता है D1 स्क्रीनिंग, D2 साइकोलॉजिकल, GT1 GT2 सर्विस। ठीक है, इसमें बता रखा तो मैं अपने 3rd अटेम्प्ट में हुआ मैं रिकमेंड, तो मैं रिटर्न हर बार हो जाता था, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता था, मतलब मैं 5 दिन बाहर हो जाता था। पहले दो अटेम्प्ट थे मेरे पहले, वो एयर फोर्स के थे, तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता था। फिर मैंने 3rd अटेम्प्ट आर्मी के लिए भरा, फिर मैं उसके लिए रिकमेंड हुआ। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब पूरी विल रखना, मतलब मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता, लोग सोचते हैं कि हम हार गए, हमसे नहीं होगा। मेरा बोला ना, मेरे को 2.5 साल लगे, इसको 2 साल लगे। हमने छोड़ा नहीं है कि यार अच्छा कोई नहीं, अगला अटेम्प्ट, कोई नहीं अगला अटेम्प्ट, और सब छोड़ देते हैं सर। ठीक है, माँ बाप तक छोड़ देते हैं सर। और ट्रस्ट में तुमको देना चाहिए सबको, क्योंकि दिस इज अ डिफरेंट। एक बार जिंदगी में एक बार जिंदगी में एसएसबी दोगे ना, बहुत कुछ सीखोगे। एक बार, बस एक बार देना, बस चले जाना कहीं, कोई भी एसएसबी आएगी तुम्हें, ठीक है, एक बार जरूर देना चाहिए। तुम बहुत ग्रो करोगे, लाइक बहुत जनरली तुम वर्ल्डली बहुत कुछ चीज़ सीखोगे, बहुत सीखोगे। ठीक है, तो किसी Q&A कुछ एकेडमी का जानना है, Q&A कुछ भी जानना है, कैसे पढ़ना है, एकेडमी कैसी है, एकेडमी कैसी है, क्या होता है, क्या लाइफ रहती है। क्या लाइफ रहती है, किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन, किसी को कुछ पूछना है। तो वाले भी नहीं बोल। लास्ट टाइम मैं 2 साल पहले आया था यहाँ पे, तब मेरा क्यों नहीं हुआ था, तब इतने भर भर के आ रहे थे। अब तो इस हाथ उठाने का मन नहीं होता है किसी को। अबे तुम्हारे सीनियर्स ही हैं यहाँ पे, लुकाइट्स ना, लुकाइट्स किसने हाथ खड़े करना? अरे लुकाइट्स बैठे, वो भी नहीं हाथ खड़ा कर। अब मैंने क्या समझाया कि सीनियर जूनियर कुछ होता है। हमको पूछोगे यार, तुम कुछ नहीं पूछोगे, हम तुम्हारे लिए आए हैं। पूछो कुछ भी डाउट है किसी से भी रिलेटेड। आर्मी बैकग्राउंड काउंट्स। हाँ, मतलब आर्मी बैकग्राउंड आई टेल यू काउंट्स इन व्हाट वे। जब तू थोड़ा एसएसबी जाता है, थोड़ा काउंट करता है, +1 भी तेरे फादर ने सर्व किया है ना, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा, ऑब्वियसली पूछेगा तेरे फादर का, तेरी हिस्ट्री होगी उसके पास इन्फॉर्मेशन, तो तेरी पूछेगा तेरे पापा के बारे में, सर्विस के बारे में, एंड यू शुड नो अबाउट हिम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस दे दिया बस बाप के उसके बाप फौज में, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। वो तेरे को बिल्कुल पोक करेगा कि अच्छा ये, अच्छा तेरा बाप ये, तो तेरे को पता होना चाहिए। अच्छा क्या रेजिमेंट में का क्या, कैसे उसमें क्या होता है, कैसे तुम्हारा वो कौन है, उसका कमांडर होता है, तू कभी गया अपने पापा के साथ रेजिमेंट, तुमने देखा है क्या होता है वगैरह। मतलब वो एक चीज़ पकड़ेगी तुम्हारी और उसको पोक करते रहेगी। अब जैसे कोई तू स्पोर्ट्स खेलता है, तुमने देखा है कि हाँ फुटबॉल खेलता हूँ ये है ना, तुझसे पूछेगा, अब तूने ऐसे लिख दे कि इम्प्रेस करने के लिए कि नहीं यार लिख देता हूँ, ये भी खेला है, ये भी खेला है, ये भी खेला है, ये भी खेला है। उसमें एक स्पोर्ट बहुत है भाई, और वो तेरे को पता होना चाहिए उसके बारे में कि मेरे को सब कुछ पता है A to Z, कि कुछ भी पूछेगा मुझसे कि अच्छा फील्ड कितनी होती है, तेरी फेवरेट टीम, फिर तेरी फेवरेट टीम के बारे में पूछेगा, फिर मैचेस के बारे में पूछेगा, क्या चल रहा है इस अभी जर्मनी फुटबॉल में, क्या ऐसे ऐसे चल रहा है। तो वो बात है। जिसने पूछा बैकग्राउंड काउंट करते नहीं करता, सो मैं बेसिकली कम्प्लीटली सिविलियन हूँ। मेरे दूर के किसी ने सर्व नहीं की। और ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि माँ बाप सिर्फ नाम देते हैं, नाम कमाना खुद पड़ता है। तो मेरे साथ से फैमिली बैकग्राउंड काउंट नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ के जो भी लड़के हैं ना, सिंपल सिविलियन, जो ये होते हैं ना कर्नल वर्नल के लड़के, इनसे कुछ नहीं होता, क्योंकि ये पैम्पर्ड चाइल्ड है। तो मैंने बस वो देखा है, बस वो है कि उनके बाप की वजह से उनको थोड़ा मतलब, जो सिंपल सिविलियंस होते हैं ना, जो मेहनत करने वाले होते हैं, वो निकलते हैं आगे से। तो मेरे हिसाब से फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल काउंट नहीं करता। जो तुम करोगे वो काउंट करेगा, हाँ, तुम्हारे ऊपर से। और कुछ गर्ल्स के लिए भी क्वेश्चन? जैसे मुझे भी स्पेक्स लगी हुई है और मेरे साथ में और भी काफ़ी लोगों को स्पेक्स लगी हुई हैं, तो आपने कहा कि -2.5 से +2.5 जिनका इससे ज़्यादा हुआ तो उनको अटेम्प्ट भी देना चाहिए। अगर ट्रीटेबल है तुम्हारी आई साइट, तो तुम पहले जो ट्रीट करो, ठीक है। और अगर तुम बहुत सीरियस हो तो तुम्हें देना चाहिए, क्योंकि
ऐसा नहीं कि आंखों की एक्सरसाइज होती है कुछ, ठीक है, मेरे दोस्तों ने भी करी थी, वो एक पेन वाली होती है जिसमें पैड में होती है, तो मैं अपनी आंखों को ट्रीट कराओ, लोग होते हैं सर्जरी कराते हैं आंखों की, पर if you're dead serious, सीरियस, अगर डेड सीरियस है कि जिंदगी surgery एंड करा दे। तभी कि जिंदगी एंड में नहीं है, तभी करना, वरना करना मत। बाकी करियर ऑप्शन भी है, आईटी तुम वहाँ से, ठीक है, अगर तुम डेड सीरियस हो तभी करो, और किसी को कुछ पूछो। अभी 1 सितंबर को एग्जाम है, तो व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी, लाइक मिड टर्म्स भी आ रहे और टाइम भी लाइक 3 मंथ्स से ज़्यादा नहीं है, तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सितंबर में है ना, 1 सितंबर। ये टाइम तुम क्या बोला, एक तुमको जनरल वो दिया क्वेश्चन का, कितने क्वेश्चंस कितने चैप्टर क्या वेटेज है क्वेश्चंस की, तो अब वही नहीं, यू हैव टू डिवोट एक्स्ट्रा टाइम। अब तुम्हारे क्या आ रहे हैं, मिड सेमेस्टर आ रहे हैं, मिड टर्म तो कितने होते हैं, 40 मार्क्स 50 मार्क्स होते हैं, 80 मार्क्स होते हैं मिड टर्म, ठीक है यार, तो 100 20 मार्क्स मार्क्स है। हमारे तो कम होते हैं मिड टर्म स्केड्यूल में, 100 कम थोड़ा 8 घंटे की 3 घंटे करो, और कुछ नहीं करना है, इंडिया में तो वही आ रहे हैं यार, जो तेरे को अभी इंडिया मत में करो आ रहे हैं। प्रिपेयर इंडिया के लिए, उसके लिए भी उतने प्रिपेयर पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है, जो तुम अभी पढ़ रहे हो ना वही एनडीए में आएगा, तुम यहाँ क्या पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, वो एनडीए में आ रहा है, मिड टर्म में वही आएगा ना सिलेबस, तो Mid term में पढ़ो। इंडिया में थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि तेरे को पुराना भी करना पड़ेगा, +1 का रिवाइज करना वो पड़ेगा, बाद में या हो वो जाएगा। तेरे को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अब तेरे पास वेटेज दिया क्वेश्चन सी, उस हिसाब से टारगेट कि मेरे को कौन से चैप्टर करना है, हर एक चैप्टर मत कर, ठीक है, जिसमें तो अच्छी नहीं है वो मत कर फालतू में, जिसमें तो अच्छी है उसको और सब है कि इसका अगर क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगी तो सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है, और मैं कर लूंगा। ये तो अपनी अप्रोच हो गया, बोला स्मार्ट अप्रोच हो गया। और 12th में जो पढ़ रहे हो ना 11th 12th में वो ढंग से ही पढ़ो, ठीक है, ये मत सोचो मिड टर्म है तो मिड टर्म में फुल मार्क्स लो पहले, अच्छे मार्क्स लो तब जाके एनडीए होगा, मिड टर्म में पढ़ो पहले फिर एनडीए में कुछ लो, 24 घंटे पढ़ो, तुम्हें लगता है ना कि नहीं करते लोग, बहुत लोग करते हैं, तुम बाहर निकलोगे दिल्ली अम्बाला, वहाँ लोग पढ़ते हैं बस, 16 में कुछ नहीं होता, अभी लोग आगे कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, तुम बाहर निकलोगे तुम पढ़ जाएगी तुम्हारी देख के लोग, हम निकले तो और हमारी पढ़ गई, लोग कितना पढ़ते हैं। मेडिकली किन बेसिस पर एलिजिबल नहीं होते? मेडिकल क्या प्रॉब्लम है? मेडिकली आउट क्या है? मतलब जैसे आई साइट बोला, कुछ डेंटल का भी कुछ इश्यूज होते हैं, हाँ होता है। और डेंटल में प्रॉब्लम क्या है? मतलब मेरे जैसे कंसर्न है ऐसा कि अगर मेरे को ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो ही मेडिकल अटैक है, जैसे ओवरवेट अंडरवेट और मेडिकल का सीन वैसे पता है इससे ज़्यादा एयरफोर्स वाला होता है, एयरफोर्स का बहुत सेंटी होता है मेडिकल, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मेडिकल आउट होते हैं। 1 किलो भी इंसान मोटा है तो बाहर ओवरवेट का भी नहीं, मतलब स्पाइन सून का तुमको तो क्या सुना होता है, तुम्हें स्पाइन कैसा क्या है, कभी देखी तो तुम ऐसे क्या एक दिन जाता हूँ स्पाइन का देख के आता हूँ ठीक है कि नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दो। अब हाँ वही है, अब इसके थोड़ा आता है, एयरफोर्स वाले को स्पाइन का बहुत सेंटी होता है। एक मेरे साथ था, रिकमेंड हो गया था एयरफोर्स के साथ, फिर वो मेडिकली आउट हो गया क्योंकि उसके क्या था, उसके हार्ट में कुछ जो पल्स होती है ना तुम्हारी, उसमें कुछ पता नहीं कुछ स्पार्क जैसा आता था, अब क्या दिक्कत है उससे, उसको कोई जनरल दिक्कत नहीं होती लाइफ में, आराम से करता है, उसको ना पता था, उसको तो जब मेडिकल हुआ एयरफोर्स का तब पता लगा नहीं क्या स्पार्क आता है कुछ उसको बोला तुम्हारे हार्ट में स्पार्क है और जो पता नहीं भाई क्या स्पार्क आता है, वो तो पता नहीं लगा उसका। वो छोड़ दो, भगवान के मेडिकल का मतलब हाँ, मेडिकल का रिटर्न का फोकस करो, एसएसबी का नहीं नहीं होता कि एसएसबी का हाँ जिसे साइड टेस्ट पे करो, जी2 अभी नहीं करना, पहले रिटर्न क्लियर पहले करो, रिटर्न करना है। एसएसबी का अगर तुमको करना है कुछ तो वो है कि तुम रिटर्न के बाद अपनी रूटीन सही करो, रूटीन सही करो, थोड़ी मतलब हैपनिंग रूटीन करो, थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, फिजिकली हैपनिंग करो, सुबह जल्दी उठो, ठीक है, थोड़ी एडवाइस अगर बुक रीडिंग कर सकते हो तो वो करो, प्लीज पिक दैट हैबिट, इट इज अ गुड हैबिट। फोन छोड़ो, फोन बुक्स रीड करो भाई, अच्छे से बुक्स बहुत अच्छी बुक्स है यार, बुक रीडिंग हैबिट लगाओ, कोई स्पोर्ट खेलो, एक पकड़ो, स्पोर्ट्स खेलो, एक पकड़ो कोई अच्छी तरह स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करो, अगर खेल नहीं पाते तो उसके बारे में पता करो, टच में रहो स्पोर्ट के कि अच्छा क्या चल रहा है कैसे, अपनी बस रूटीन थोड़ी हैपनिंग बताओ, ये नहीं कि खाना अच्छा खाओ, हाँ खाना अच्छा खाना खाओ, अच्छा थोड़ा कि 12 बजे उठ रहा हूँ, और फिर फोन चला रहा हूँ, फिर कहीं जा रहा हूँ, फिर आ गया, ये नहीं, ये तो फिर तुम दिन काट रहे हो इसने कर दिया, लेकिन ऐसे मत काटो, वही बोल रहा हूँ, थोड़ी अच्छी एक्टिव अभी तुम्हारा टाइम है 11 12 साल क्योंकि तुम अपनी एक्टिविटी रखोगे तो तुम्हारे इवेंचुअली वो शो होगा आगे एसएसबी में, क्योंकि तुम नहीं की होगी वो चीज़ें, तुमसे पूछेगा अच्छा ऐसे ऐसे करते था कि तू वो पूछ लिया व्हाट इज योर डेली रूटीन ना, हाँ, यू कैन से कि हाँ मैं 12 बजे नहीं उठता, मैं ऐसे तुम वहाँ पे झूठी बोलने लग जाओगे, तुम उठते 12 एसएसबी बजे फुल फॉर्म पता है अनऑफिशियल, सच सच बोलो, सही में सच सच बोलो भाई, जो है वो है, अगर कुछ गलत है तो गलत भी बोलो, तुम्हारे बारे में कुछ गलत है बोलो, बोलना पड़ता और वो निकलवाएगा गलत,
वो बहुत स्मार्ट है, जो तुम्हारे आगे बैठा है उसको इसी जॉब के लिए रखा है कि तुमको पकड़ेगा, फंसाएगा, कहीं ना कहीं तो फंसाएगा, हर जगह फंसाएगा, पर तुमको स्मार्टली आंसर करना आना चाहिए, अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए। कोई बुरी चीज़ है उसको भी थोड़े अच्छे वे में रिप्रेजेंट करो, ऐसे नहीं कि तुम कि हाँ मतलब ज़्यादा ही बुरे हो गए कि गुंडे हो तो ऐसे नहीं होता। ये You're a good है। human being बस। दारू वगैरह पीते हो? हाँ सर मैं तो पीता पीता हूँ हूँ, है सर। ना, पीते हैं। बिल्कुल। पापा कितनी पीते हो फोन सर? में- कितने डेली, है ना? ठीक है, अब जनरल पीते हैं, अब मेरे को होता है ना, तो कुछ यार अच्छे फीलिंग और सर हाँ समटाइम्स ओकेजनली एंड आई मीन Family. पेरेंट्स है ना, ऐसे वगैरह वगैरह ये पूरा समझ लो ना ऐसे। और अगर डेली पीते हो तो सुधारो उसको भी। हाँ यहाँ पे बात कर सुनने को मिलता है कुछ ज़्यादा ही। हाँ क्या वो क्लास में बैठ के क्या डालते तुम अपने मुंह में, छोटी सी क्या बोलते हो? हाँ स्ट्रिप क्या होता है वो भाई, तुमको पता ही नहीं होता, इसको पता भी नहीं हमसे, तो ये हैरान हो रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? स्कूल में बैठ के सीधे क्लास में शुरू हो गए, सो लड़कियाँ सिगरेट पी रही है, बस पार्टी कर रही है, और वो इंस्टा पे स्टोरी 2 मिनट में ये सब भर के थे, तब अच्छी लगती है जब तुम कुछ फोड़ा हो जिंदगी में। तो मतलब 2 लोगों को शक्ल दिखाने लाए तो तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं बोलते, ऐसा करता हूँ ठीक है, पर मैंने इंडिया के अनुसार कुछ नहीं एक बार मेरे को कोई कुछ नहीं बोलता, मैं कहीं ना मैं करता हूँ ठीक है, दोस्तों के साथ जाता हूँ, अपना एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ, पर मेरे को कोई कुछ छू भी नहीं बोल सकता, क्योंकि पहले कुछ फोड़ा है, फिर नाम बनाए, अब मैं कर सकता हूँ, पर फौज में तो कुछ बोल भी नहीं सकता। तो अगर तुम ज़्यादा पैशनेट हो इसीलिए तो फौज में आओ, वहाँ करो आराम से, पर अभी नहीं करना चाहिए, बहुत गलत कर रहे हो, ये हम तुम्हारे जूनियर्स को भी सिखा रहे हैं। और 12th वालों को तो ऐसा होना चाहिए कि आइडियलाइज सीनियर्स होने चाहिए अपनी 11th वालों के लिए, 10th वालों के लिए, तुम लाइक उनको लगना चाहिए यार भैया हैं आप स्कूल में तो वो गाइड करेंगे। लाइक जब मैं था तो ऐसे मत होता, पर मेरे जो सीनियर्स हैं मैं उनसे हेल्प मांगता, सर ऐसे ऐसे बताओ ये प्रॉब्लम हो रही है घर पे, मेरे जूनियर्स आते हैं वो रोते आते हैं, सर ये ऐसे हो गया। तो रिसेंटली क्या होता है, बहुत जूनियर आया था मेरा, उसका गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था ठीक है, तो वो रोता आया, फिर गर्लफ्रेंड ब्रेकअप कर दिया, तो मैंने उसको 5 मारी तो बोला अच्छा ठीक है बाद में आना, फिर बाद में चुप हो गया खुद ही। तो ऐसे जब मतलब हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने मारी उसको, उसकी भलाई के लिए गया, तो वो क्यों रो रहा है, वो एक ही लड़की है क्या पूरी दुनिया में, तो उसका भी फोकस करना चाहिए करियर पे। तो मैं गुड सीनियर बनो, अपने जूनियर्स की हेल्प करो, 11th वालों से दोनों के लिए, तुम सीनियर मत स्कूल में, 12th वाले तो फिर भी अपने बोर्ड्स का बिजी है, 11th वाले तो फ्री रहते हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ हम जूनियर्स का ख्याल रखेंगे, हम पढ़ाई में हेल्प करेंगे, वो करियर ऑप्शन बताओ। ये थोड़ा होता है कि अच्छा वो 11th C की लड़की है, वो 12th A की लड़का है, वो 10th की लड़की है, वो 12th की क्या है, ऐसा ऐसे ही होता है स्कूल में। तो ये सब नहीं करा करो, और इस टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करो, जहाँ भी जाते हैं लुक्स के बच्चे ऐसे हैं, लुक्स के बच्चे ऐसे हैं, लुक्स के बच्चे ऐसे हैं, कोई अच्छा तो बोलते नहीं है तुम्हारे बारे में। अब वो पुरानी बात कहाँ रही, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो तुम कर ही ऐसा पूछ रहे हो कि भाई इम्प्रूव करो, तुम्हारे ये भी बताने हैं तुम्हें इम्प्रूव करो, अभी पढ़ने का टाइम है और करियर बनाने का टाइम है, ये सब करने का नहीं टाइम है, तो तुम सोचो ये सब अच्छी लगती है जब तुम कुछ कर दो, तो तुम खड़े हो जाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो, थोड़ा उनको थोड़ा उनका नाम करो, तब अच्छे लगते हैं, फिर थोड़ा सीरियस हो। कौन कौन बहुत ज़्यादा सीरियस है कोई नहीं, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, एटलीस्ट तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो। और ये तुम करोगे ना, तुम कहीं भी चले जाओ, जो भी तुम IIT में जाओ, तो तुम्हारी फीस लगेगी 20-25 लाख, तुम कहीं जाओ, तुम प्राइवेट कॉलेज में जाओ, अभी तुम्हारी 20-25 लाख लगेगी, उसके बाद तुम्हारा मैक्सिमम पैकेज स्टार्टिंग क्या लगेगा, 60,000 कमा लोगे तुम महीना, मैक्सिमम तुम अच्छा हो बहुत अच्छा हो, उसमें तुम्हारे 40,000 चले जाएंगे खाने पीने रहने जहाँ तुम जाओगे, 20,000 में तुम लाइफ एंजॉय कर पाओगे। देखो मैं मोटिवेशन के लिए गया था फॉल, मेरे को तो चाहिए थे बेनिफिट्स, मेरे को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, तो मैं NDA के लिए गया था क्योंकि बेस्ट था मेरी। IIT NIT से मेरे दिया नहीं, आज तक जी नहीं दिया मेरे को, नहीं मतलब क्योंकि वो एक्सपेंसिव है अगर तुम कर भी लो क्लियर, पर NDA ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें प्रोवाइड ही करेगा और तुमसे बस मांगेगा। तुम भाई 22 साल की इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ये 22 साल की उम्र में अब मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, वो 21-22 के हैं, उसका कुछ भी नहीं है, बीटेक हो गई अब क्या करें, ये तो भाई बात होगी, स्कूलिंग हो गई अब क्या करें, बीटेक हो गई अब क्या करें। तो
गिव पेपर, एटलीस्ट गिव पेपर, ठीक है? पेपर दो ट्राई कर लो भाई। तुम्हें पता नहीं होगा इसके बारे में, but बहुत अच्छा है ये एग्जाम, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें, लाइफ बन जाएगी तुम्हें। काफ़ी लोग डरते हैं कि नहीं होगा एग्जाम से, पर नहीं, तुम करो, तुम कोशिश तो करो एक बार। कहीं तो पुटिन मारना पड़ेगा। तुम एनआईटी जाना तो एनआईटी के लिए करो, हम नहीं बोल रहे एनडी करो बस, पर तुम्हें पुटिन मारना शुरू वैसे कर तुम अब तुम ऐसे स्टेज पे हो, अब तुमको भाई हिसानी पड़ेगी, ये बात है। मेरे 12th तक नहीं पढ़ा, मैं पता ही है, बता दिया मैंने। उसके बाद बहुत पढ़ना पड़ा, रियलाइज है कि गलती कर दी। ऐसे दोस्तों के बीच रहता था मैं अपने, वो भी मज़े करते थे, मैं मज़े करता था, पर जब आँख खुली तो लेट हो गया था, तो ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ी। तो तुम्हारी आँखें अभी खुल जाती तुम्हारे लिए, अच्छी मेहनत करनी है। 17 साल की होंगी मैक्सिमम यहाँ पे, 17 ईयर है ना, कुछ भी नहीं है। फिर तुम इंडिया करते हो 21 में ऑफिसर बन जाते हो। लाइक कोई क्वेश्चन कुछ भी करो। नीचे को क्या एडमिन वगैरह कैसे वो बता चलता रही डेली नॉलेज। है? एवरेज डे तुमको बता रहा हूँ मैं, क्या होती है रूटीन में? तो व्हाट इज इट, 5:30 बजे उठोगे, ऑफिशियल टाइमिंग 5:30 बजे की है, अनऑफिशियल तुमको कभी उठा देगा। अगर तुमने गलती करी है कुछ, अगर तुम्हें ज़्यादा गर्मी है तो रात को निकाल के तुम्हें ठंडा किया जाता है। अगर तुमने ज़्यादा गलतियाँ करी है, तुम ज़्यादा गलती करने वाले इंसान हो, तो तुम्हारी सारी गलतियाँ तुम रात को सुधारते हो। अभी देयर इज नो ईगो इन इंडिया, हाँ। तुम्हारी ईगो सारी तोड़ दी जाएगी, तुम फर्स्ट टर्म में आओगे, तुम्हें मतलब नथिंग, आई एम टेलिंग यू, दे ट्रीट यू एज इंसेक्ट्स फर्स्ट टर्मर्स। इंसेक्ट्स भी बहुत बड़ी बात है उनके लिए। कुछ नहीं होता कोई फर्स्ट nothing। टर्म, फर्स्ट टर्म आता है बस खेलते हैं उसको, और कोई नहीं। वो बस वो तो खुद लॉस्ट होता है कि हाँ, क्या चल रहा है मेरे क्या साथ, चल क्या रहा हो है। रहा है ना, क्या जिंदगी कहाँ आ गया है ना, छोड़ते हैं हाँ मतलब जने, जो ये जो टिक जाते हैं, मतलब एवरीथिंग इवेंचुअली पासेस बाय, जितना भी बुरा होता है। तो 5:30 तुम्हारी ऑफिशियल टाइमिंग है उठने की। उसके बाद तुम्हारी आउटडोर ट्रेनिंग होती है। आउटडोर ट्रेनिंग 2 पीरियड की होती है, दैट माइट बी पीटी, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग और एकेडमिक्स कम होती है वैसे, इन सब में से होती है ड्रिल में मिस करना, ड्रिल भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। परेड जो होती है एनसीसी में होगा, तुम्हें पता होगा तुमको, है ना क्या होती है। देन यू कम बैक, चेंज, फ्रेशन अप, है ना, चेंज इनटू योर एकेडमिक स्टडी, गो फॉर ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट मिलता है, अगर ब्रेकफास्ट मिल रहा मतलब वहाँ struggle है वहाँ पे पे। में खाना भी नहीं मिलता। अगर जैसे किसने कोई गलती करी, ठीक है, इसने कोई बहुत बड़ी गलती करी, और अगर इसको मेरे को सबक सिखाना है, तो मैं इसका खाना पानी सोना सब बंद कर दूँगा। सब उसको 2 दिन अपने आप अक्ल आ जाएगी, ये गलती कर दी है। हमारे साथ यहाँ पे नहीं कर सकते ना, घर वाले आ जाएंगे बीच में, तो वहाँ पे घर वाले नहीं अंदर पास, वहाँ पे तुम ही हो अपने। अगर किसी का कुछ किया तो तुमने गलती करी, तुम ही भरो। तुम्हारा अगर जिस दिन तुम्हारा खाना पानी सोना बंद कर दिया, उसी दिन सीधे हो जाओगे। then after breakfast you go for academics, मतलब 9:30 से 1:30 तक academics होता है। academics में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बताया था ना, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह, सर्विस सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल जो भी होते हैं तुम्हारे विद रिस्पेक्ट टू योर सर्विस। सी नेवी वाले की नेवी रिस्पेक्टेड होगी, आर्मी रिस्पेक्टेड टैक्टिक्स होगी, उसके साथ तुम बीएससी केमिस्ट्री भी करोगे, एंड दैट डिग्री दैट यू डू ऑफ बीएससी केमिस्ट्री गेट दैट फ्रॉम जेएनयू, पता है जेएनयू, तो जेएनयू से डिग्री मिलेगी। जेएनयू की डिग्री मिलती है तुमको। अगर तुम नेवी एयरफोर्स में तुम्हें बीटेक करनी पड़ेगी, ये सुन लो, हाँ, ये बीटेक कंपलसरी बीटेक करनी पड़ेगी तुम्हें, अगर तुम नेवी एयरफोर्स तो जा रहे आर्मी में तो तुम बीएससी केमिस्ट्री और बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। इससे तुमको आगे पता लगेगा क्या फर्क पड़ता है इन सब में से, तो ज्वाइन कर दोगे तो पता लगता है। देन आफ्टर 1:30 यू हैव योर लंच, वो भी अगर मिले तो ठीक है। उसके बाद देन यू हैव योर स्क्वाड एक्टिविटीज, योर स्क्वाड्रन एक्टिविटीज। अब जो तुम्हारे 6 नंबर्स एकेडमी क्या होती है, इट इज रन बाय कैडेट्स ओनली, कैडेट्स ही रन करते हैं एकेडमी, मतलब ऑफिसर पार्टी भी होती है वहाँ पे, पर वो इतना चेक करने के लिए चेक करने की होती है बस कि चल रहा है। जो 6 टर्मर्स प्लान आउट एवरीथिंग, 6 टर्मर्स आर सीनियर मोस्ट, दे प्लान आउट एवरीथिंग। 5 टर्मर्स, अब हम लोग 5 टर्म में होते हैं। 5 टर्मर्स का है थोड़ा जूनियर पार्टी को मेक श्योर कराना, पास ऑन करना हो बस। अब एक 6 टर्मर का भी स्टैंडर्ड है, वो जाके 21 को कुछ नहीं बोलता, और उसको 21 को कुछ पास ऑन करना है तो चैनल करेगा पंजे से, फिर पंजा चौके हो, चौका तिक्की हो, तिक्की दुक्की हो, तिक्की जैसे इनको हुई, समझ नहीं आ दुक्की रहा। को नहीं। जैसे तुम समझ लो, हमारे लुक्स है, वो टीचर चलाते हैं, तुम्हें टीचर देंगे आज हम असेंबली करेंगे, तुम्हें सब कहते हैं ना कल स्पोर्ट्स मीट होगी, अब वही चीज़ 12th वाले करे तो 12th वाले डिसाइड करें कि स्पोर्ट्स मीट होगी, 12th वाले डिसाइड करें कि बहुत पढ़ाई कब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। आती है सीनियर टर्म्स में। ये फर्क पड़ता है। और 12th वाले डिसाइड कर रहे हैं डिसिप्लिन कैसे,
तो 12th वाले सब कर रहे हैं, क्या रूटीन 10th वाले उनकी हेल्प कर रहे हैं, +1 वाले उनकी हेल्प कर रहे हैं कि सर कि भैया स्पोर्ट्स मीट के लिए बन जाओगे, भैया फुटबॉल खेलने के लिए बन जाओगे। ये फर्क पड़ता है, ये सीनियर जूनियर फोर्थ टर्मर से इंश्योर कराते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्मर से कि हो रहा है वो ऑन ग्राउंड जो भी बोल रहे हैं। एंड दैट सीनियर इज आल्सो हैविंग रिस्पांसिबिलिटी जो 6 टर्मर है कि मेरे जूनियर्स भी कर रहे हैं सारे, ये ऐसा नहीं कि बस उसको पास ऑन करना होगा, ये भी लायबल फॉर देम, अगर कुछ गलती करता है तो भी लायबल है, कुछ अच्छा करता है तो भी लायबल है, ये बात है। देन फिर वही लंच के बाद तुम्हारी स्क्वाड एक्टिविटी है, उसमें तुम्हारा अब वही जो सिस्टम में डिसाइड किया, या अगर वॉलीबॉल इवेंट आ रहा है तो वॉलीबॉल चलेगा, अगर फुटबॉल आ रहा है फुटबॉल चलेगा, अगर पीटी आ रहा है इवेंट पीटी चलेगा, अगर एकेडमिक्स आ रहा है तो एकेडमिक्स चलेगा, क्लब डे है तो क्लब डे चलेगा। फिर उसके बाद तुम्हारा ये चलता है अराउंड क्रॉस कंट्री आ रही तो क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस चलेगी, ये तुम्हारा 5 तक चलता है, फिर 5:30 तक, फिर 6 से 8 तक होता है तुम्हारा स्टडी पीरियड कंपल्सरी, तुम पढ़ोगे, उसमें तुम पढ़ोगे बस बैठ के, चेंज इनटू डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, और तुम हर इवेंट के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म्स होती हैं, दैट शुड बी A1 टिप टॉप। तो कपड़े पहनना सिखा देंगे, कपड़े पहनने सिखा देंगे बच्चों को, लगता है आते हैं करने वो ग्रीस चाहिए ना पैंट पे, तो ऐसी धारी वाली ग्रीस चाहिए, बस छूते ही पता लगता है। तुम सीखोगे, तुम आओगे बहुत कुछ सीखोगे, तो- कपड़े कैसे पहनने, खाना कैसे खाना, वैसे एटिकेट्स वगैरह बहुत सिंपल। बहुत कुछ सीखोगे। तो उसके बाद देन यू हैव अ स्टडी पीरियड, देन आफ्टर स्टडी पीरियड दैट यू हैव योर ऑर्डर फॉलोइंग, तो उसमें ऑर्डर्स पास होते हैं नेक्स्ट डे या प्रेजेंट डे के, देन यू हैव डिनर, देन आफ्टर डिनर वही स्कॉन एक्टिविटीज, पीटी 1 घंटे तक कभी पीटी करानी वगैरह, फिजिकली फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक्स कराने, स्पोर्ट्स कराने, बुलेटिन, जैसे यहाँ पर बहुत कुछ होता है, स्कॉन सोशल वगैरह, हाँ, बटालियन भी, तो बहुत ये नहीं होता कि बस ट्रेनिंग लग रही है, वगैरह, मजे भी होती, पार्टीज भी बहुत होती, होता है, पार्टीज बहुत भी को-करिकुलर है। तो ये है, और तुम्हारी 18 स्क्वाड्रंस कंपीट कर रही है हर एक इवेंट के लिए, मेन यही होता है। जो ड्राइविंग स्पिरिट होती है ना कि कराना अच्छा, वो ये होती है कि अच्छा मेरे को अपने स्क्वाड्रन को चैंपियन स्क्वाड्रन बनाना है हर इवेंट, मतलब एक एंड में पूरे ओवरऑल चैंपियनशिप निकलती है, वो काउंट करती है हर एक इवेंट को फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे। स्कूल में भी होता है ना कि कौन जीता, टैगोर जीता लास्ट में, होता है सर? हाँ, तो वो वहाँ पे इंडिया में ऐसा रहता है कि जैसे 4 ऑफिसर स्कूल में समझ लो, तो टैगोर को जीता नहीं जीता नहीं, जैसे वहाँ पे सब में स्पिरिट रहती है। लास्ट में जो जीता टैगोर तो बहुत बड़ी पार्टी होगी, साथ में पार्टी कर रही तुम बात की तरफ बोलोगे कि हाँ जीते हैं, कुछ जी क्या है हमने किया। फिर उसके बाद 10:30 लाइट्स आउट हो जाती है ऑफिशियल, मतलब 10:30 तुम्हें सोना है ऑफिशियली, पर अगर तुम्हें जूनियर टर्म्स में उतार नहीं होती थी खाना पानी कुछ स्टूडेंट में तो तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ नहीं आता ना, तुम तुम्हारी गलती नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं ना हरियाणा साइड के कि हाँ हम तो जाट हैं, ये हैं, तुम जाट का जा अलग करते हैं, टाला करते हैं रात को पूरी रात, इसका भी किससे होते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो पनिशमेंट हम आपको करा देते हैं, हमने भी खाई है। डरने वाली बात नहीं है, पर इट इज पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ मजा आता है, कैंप्स, मजा आता है। कैंप्स हुई है तुम्हारी सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म में होता है कैंप ग्रीनॉन, कैंप रोवर्स, अभी हम कैंप रोवर्स करके है फोर्थ टर्म। कैंप रोवर्स इज टफेस्ट कैंप इन आवर एज ग्रुप इन होल वर्ल्ड। कैंप रोवर्स जो है मतलब इट वाज 5 डेज ऑफ हेल, उसमें 100 किलोमीटर का जोश होता बहुत कुछ होता है, वो लास्ट दिन होता है 5-6 दिन, बहुत कुछ है। मैप रीडिंग्स होती है, मैप रीडिंग भी सिखा देंगे तुमको छोड़ देंगे, तुमको चेक पॉइंट टू चेक पॉइंट हिट करते हुए फाइनल चेक पॉइंट तक पहुंचना है। है, सर्वाइव तुम्हारे पास बस मैप है और एक कंपास है, कोई जीपीएस नहीं, तो उसके वे में तुमको कंट्रोल्स रीड करना, अच्छा क्या रास्ता लेना है, क्या कैसे कहाँ पर वो है, खाई है कहाँ वो है, वो तुमको सिखाया जाता है ऑब्वियसली। अब ये भी तुम्हारे चलते कंपटीशन में 18 स्क्वाड्रन है, कौन पहले चेक पॉइंट हिट करी, कौन पहले पहुंचा, इट इज अ रेस किसने पहले खत्म कर लिया, कौन अगर फर्स्ट आया तो अच्छी बात है, अगर लास्ट आया तो तुम वापस कौन जाओगे, फिर वापस बचोगे। मतलब अगर तुम परफॉर्म नहीं कर रहे तो बचोगे, तुम फेल हो गए तो वहाँ पे नहीं होता बेटा कोई बात नहीं, अगले टाइम हाँ फेल कैसे हो गए, इधर आओ मैं पास करती हूँ, तो मारते हुए नहीं मारते, कुछ भी तुम गलती कर हमारे रहे टाइम तो लाल कर देते भाई सर मार मार के। हो, चेंज हो गया। हाँ फीमेल कैडेट्स का मतलब पूछा, मतलब स्टार्टिंग में एकेडमी को भी बहुत दिक्कत आई फीमेल कैडेट्स को इंस्टॉल करने में, क्योंकि वो सेम रूटीन फॉलो नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल उनके लिए जैसे। पर अब थोड़ा हाँ मतलब चीज़ें वही कर रही है जो हम कर रहे हैं, तो थोड़े लोअर स्केल पे उनके लेवल पे। जो हमारा कोर्स है 148 कोर्स, जो फर्स्ट फीमेल बैच है, वो सेट करिए स्टैंडर्ड्स अपनी जूनियर्स के लिए, जैसे क्या क्या होना चाहिए। बॉयज से क्या होता है इट विल मेन थ्रूआउट द वे चेंज होता रहेगा, क्योंकि अभी आया है, तो इट विल टेक टाइम टू सेटल डाउन। मतलब एम तो इवेंचुअली एंड में यही है कि इक्वल लेवल पे करानी है,
मतलब देयर इज दिस थिंग कॉल्ड इक्वालिटी एंड इक्विटी। पता है किसी को इक्विटी? इक्वालिटी क्या होता है तुम्हारा? इक्वालिटी बताइए सबको। इक्विटी क्या होता है? जिस एग्जाम्पल से बताऊँ, हाँ अब एक ये दीवार है, ठीक है, अब एक 6 फीट का बंदा है, एक 4 फीट का बंदा है, ठीक है, 6 फीट का बंदा भी खड़ा है, 4 फीट का बंदा भी खड़ा है। 6 फीट वाले को तो बड़े को आराम से दिख रहा है ना, अब 4 फीट वाली की क्या गलती है, उसकी 4 फीट है तो उसके नीचे 2 बक्से लगा देंगे ताकि वो भी 6 फीट लगा जाए, दैट इज इक्विटी। तो भी इक्विटी पे चल रहा है, समझ रहे हो? लेडी कैडेट्स का जो मतलब थोड़ा पब्लिक कर दें, जैसे मैं बता रहा हूँ मतलब थोड़े पीटी स्टैंडर्ड्स डाउन है, जैसे ऑब्वियसली boys के क्या क्या होता है? करना पड़ेगा। जैसे बॉयज़ को 2.5 किलोमीटर भागना होता है 9 मिनट 10 मिनट, तो वही चीज़ हम लड़कियों के लिए कर देंगे कि तुम 12 मिनट में हो, तुम 12:30 में। इट इज चैलेंजिंग, ऐसा नहीं है कि लड़कियां मतलब फुटेज मुश्किल है भाई, हैं। तुम्हारे साइड ज्यादा मुश्किल है। चल हम तो कर ही लेते हैं, फिर बाकी है कि पुशअप जैसे लड़कों के लिए 35 पुशअप टेस्ट है, लड़कियों के लिए 10-15 कर देंगे। अकेडमी में हमारे ऐसा होता है, थोड़ी पीटी कम कर देंगे। लड़कों के लिए अगर 100 मीटर स्विमिंग का टेस्ट है तो उनको लड़कियों के लिए 50 कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे उनको अपलिफ्ट कर लें ताकि वो और लड़कियाँ पर आना चाहिए, बहुत अच्छा सिग्नल और ये न्यू ट्रेनिंग हमारे साथ ही होता है, हमारे साथ। क्लासेस में भी हमारे साथ है, कोई कैंप्स वगैरह में भी जाते हैं। हालांकि उनका अलग स्कूल होता है, पर वो जोशरन, मैंने क्या बोला, जो कैंप रिवर्स किया ना, उन्होंने पूरा कैंप रिवर्स किया। जोशरन जो थी अपने किलोमीटर, उनको भी उतना ही सामान था उनके पास, पूरा सबके पास उन्होंने उतना नहीं किया। हालांकि उनको टाइम लगा था, तो इसकी वजह से ये था, पर उन्होंने पूरे लोड के साथ पूरा डिस्टेंस, ऐसा नहीं था कि कट शॉर्ट किया था डिस्टेंस। और कुछ किसी का सवाल किस रिलेटेड कुछ भी है? तो में से है कोई वैसे फौजी बैकग्राउंड से? जैसी हो आर्मी कहाँ पोस्टेड है कि रिटायर? सोसाइटी ऑफिसर। सोसाइटी तो क्या समझता है ना? तो तुम सिविलियन हो, तुमको नहीं पता फौज क्या होती है, पर एक बार उनको आइडिया होगा फौज से क्या कैसा होगा, तो थोड़ा पता होगा। है उसमें ठीक है भाई। ट्राई करो तुम्हारे अच्छा ये करियर ऑप्शन बेस्ट है अभी हमारे लिए। मतलब तुम जो बेस्ट कर सकते हो ये है। इन केस अगर तुम्हें IIT भी अपने हिसाब से बिजनेस करना है वो तुम्हारे ऊपर है, फिर ये तुम कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। SSB का ये करना ट्राई, तुम्हारे पास 2 एंट्रीज आएंगी, एक तुम NDA से आ सकते हो SSB, एक अगर 12th वालों को बताओ 10+2 बीटेक एंट्री होती है, टेक्निकल इंग्लिश। उसमें तुम्हें JEE देना पड़ेगा। तो एक होती है जिसमें तुम टेक्निकल में जाते हो, जेई वाले में तुमको रिटर्न नहीं देना है कोई, तुमको एक वो है डायरेक्ट SSB आएगी तुम्हारी, डायरेक्ट एसएसबी आएगी। परसेंटाइल कितनी जो है 80% याद कितना +2 में तुम्हारे 80% से ऊपर होनी चाहिए और परसेंटाइल 85 तक आगे JEE में, तो तुम्हारे SSB सीधे आ जाएगी। सीधे एक एसएसबी आएगी तुम्हारी। एक फॉर्म भर, पर ऐसा है कि वो एसएसबी की सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। कम है, अराउंड 400 पीपल आते हैं फर्स्ट डे। 400 अंदर होते हैं 40, और उनमें से एक दो रिकमेंड 400 में से एक बंदा। वेयर इन NDA 200 बंदे आते हैं, 40 अंदर होते हैं और 10-12 हो जाते हैं। 8 9 10 कभी ग्रुप पे वॉश आउट हो जाता है। मेरे टाइम में 12 ऐसे भी होता है कि कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, 400 बंदे हैं, 400 में से कोई ये टेक्निकल इंटरव्यू का बता रहे हैं। मतलब इनको ये नहीं है कि मेरे को सिलेक्ट करनी ही करना है, मतलब इंडिया इज इनको नॉट अच्छे बंदे चाहिए, जो डिजर्विंग है वो सारे, चाहे ये 600 सिलेक्ट करेगा चाहे 400 करेगा, अगर जो डिजर्विंग होगा वो हो जाएगा सिलेक्ट। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतनी सीटें हैं, मेरे को इतनी सीटें भरनी है, ठीक है, ये ग्रुप भी वॉश आउट कर देते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे खाली चल जाए सीट्स, इनको बंदे चाहिए ठंडे। पर इनको चाहिए बंदे। मैंने को क्या बोला बेस लाइन क्या है इनकी कि ट्रेनिंग यू टू लीड मेन इन वॉर बेसिकली। इनमें तो ये है कि तुम अपने क्या बोलते हैं एज अ ऑफिसर तुम अपने फौजी को लीड करोगे, यू डायरेक्ट देम, यू विल हैव देयर लाइव्स ऑन योर हैंड, ठीक है। तुम बोलोगे ना अगर अच्छा यहाँ से जाना है ऐसा करना है तो करेंगे, और तुम सही बोलोगे तो उनकी जान बच जाएगी, गलत बोलोगे तो उनकी जान बच उनकी जान जाएगी। इतनी पावर रिस्पांसिबिलिटी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी पावर है तुम्हारे पास।